The idea is that maximum possible people who may be, or kids particularly, may be interested to join gymnastics, but do not have the access to equipment in cities. They can start practicing what is being taught, which can be done even without any apparatus or any mat. Once they learn basics, and if they have the capability to do better in future, they can be spotted by SAI during their selection trials for STCs and NCOEs. The idea is not to keep them engaged, but idea is to find talent among them. I would request that you guys publicize it maximum possible so that more and more kids join through whichever means you can, through news media, through WhatsApp groups, or through your friends. Please do publicize it well so that more people join and avail this opportunity. Thank you very much once again. And now I give it back to Nirbhay ji and Pathania ji to take it forward from here without wasting more time. Nirbhay sir, can I say something? Yeah, please. Nirbhay sir. Program. I request Dr. Pathania, a very senior gymnastic coach. I think Mr. Vishweshanandi has joined, so let me welcome him. Vishweshanandi has joined. Let me welcome Mr. Nandi. And बेटे इसका नंदी जी का अनम्यूट कर दो. हाँ जी सर, किया है सर. अच्छा. Mr. Nandi, welcome to the show. Thank you very much for joining. सर उन्होंने शायद फिर से म्यूट कर दिया अपने आप को. Okay. कोई नहीं. Whenever he gets to speak, you don't mute him. Oh, sure. Whenever he gets time, he can speak. So over to you. Please start. Please carry on. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Dr. Rajendra Pathana, I invite you to say a few words about this. Good morning, everybody. This athlete education, coaching and education program, SAI has started this under the leadership of DG SAI, Shri Sandeep Pradhan ji, and with the Eastern Zone Sports Authority of India under the guidance of Shri Shiv Sharma ji, Regional Director, and we are organizing this. And it is a great pleasure for me to welcome our Regional Director, Shri Shiv Sharma ji, Shri B.S. Nandi, Dronacharya Awadi, and coach of Deepa Karmarkar, Mr. Kaushik Pitwala, and Treasurer GFI. I also welcome, but he has not joined our GFI President, Mr. Sudhir Mittal, due to some eye problem. And the team of Mr. Nirbhay Singh. Mr. Nirbhay Singh nominated the Program Director of Grassroots Levels, Athlete Training, Coaching and Education Program. And expert panel, we have Mr. R.N. Mangla, Mr. Dr. Ravinder Kumar, Mrs. Sandhya Kaul, Mr. Rohit Jaswal, and Mr. Lakhan Sharma. So I all welcome again and hope the program will be continued as said our regional director, and I hope under his guidance we will make it a success. Thank you for all. Very well words this course. I have not आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है निर्भय सर का कल से. सर आप मंगला सर आप ले लो ना थोड़ा. सर मैं बोलूं क्या? अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है? अभी आ रही है. ठीक है, बोलिए. हाँ GFI नहीं आ रही. Since our president सर आवाज कट रही है. मैं बोलता हूँ सर. आप बोलो. हाँ, अभी
हमारे साथ में श्री कौशिक बीड़ीवाला, ट्रेजरर जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो हमारे साथ हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑफ दिस कमेटी, I welcome Mr. Kaushik Bediwala and request to say few words to our young gymnast and encourage them. Please, Mr. Kaushik Bediwala. सर पहले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपने मुझे ये मौका दिया, और साई के इतने सारे लोगों को इकट्ठा मैंने देखा जूम के मीटिंग के ऊपर, और मेरा इतना ही कहना है कि आपका जो प्रयास है डेवलपमेंट के लिए, वो प्रयास के लिए हर एक स्टेट को ये जरूरत है। हर एक स्टेट के अंदर आज लॉकडाउन के अंदर सब बच्चे घर पे पड़े हैं, उनको सबको मेरा एक ही मैसेज है कि घर पर बैठे बैठे आपकी जो एक्टिविटी चल रही है उसको ज्वाइन करें, और घर पर भी बैठे बैठे कोई ना कोई एक्टिविटी चालू रखें। जैसे हमने हमारे सेंटर के ही हम लोग डेली जूम मीटिंग के ऊपर सभी बच्चों को प्रैक्टिस हम ट्रेनिंग देते हैं, तो वही हिसाब से हर एक बच्चे को मेरा मैसेज है कि कैसे भी करके आप एक्टिव रहो। ऐसा ना हो कि जिम्नास्टिक्स ऐसी गेम है कि आप 2 महीने अगर बंद हो गए तो आपको जीरो होके वापस से शुरू करना पड़े, तो ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। सबको प्रैक्टिस में रूटीन में रहना ही पड़ेगा। और आप लोगों का जो पहला जो आपका कोर्स था उसमें भी आपकी जो सक्सेस मैंने देखी है, और ये दूसरा कोर्स आप चालू करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इसके अंदर और सक्सेस हो, और बच्चे और भी इंडिया के जो भी जिम्नास्ट है आपके साथ जुड़े और अपने आप को डेवलप करें, और आप उसके अंदर पूरा प्रयास आपका सक्सेस हो जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Kaushik ji. Deepa and Nandi ji have joined. So over to Nandi ji. Please address the children. Thank you very much, sir. First of all, I thanks to Sports Authority of India and Gymnastics Federation of India. सर मैं एक सिंपली कोच हूँ, और मैं बच्चे से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे मेरा सुन रहा है, मैं इनसे यही बताना चाहता हूँ कि बेटा सुबह शाम अगर हो सके अपना घर में ऐसा एक्सरसाइज करो, जो जब भी लॉकडाउन खुले, आपका जिम खुले, तब आपको दोबारा कंडीशनिंग एक्सरसाइज करके अपना बॉडी फिटनेस करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसीलिए मौका है, आप 2 टाइम सुबह और शाम अच्छी तरह कंडीशनिंग एक्सरसाइज करो। जैसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का बहुत जरूरी है, तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बहुत जरूर करना, सुबह शाम 2 टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी के बिना जिम्नास्टिक जीरो है। हमारा जो जिम्नास्ट है, मैंने अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी पुराना जिम्नास्ट है, हमें मैक्सिमम डिडक्शन होता है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और एग्जीक्यूशन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी करने से आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा आएगी, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगी। तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अच्छा जिम्नास्ट बनने के लिए। तो सुबह शाम ट्राई करो। आप सुबह अगर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज किया तो शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एब्डोमिनल ट्रेनिंग, स्टेमिना ट्रेनिंग, ये आप अपना घर में कर सकते हो। जितना भी आपका घर में प्लेस है, उसी प्लेस में आप कर सकते हो। तो आपको करना है। देखो अभी भी दीपा दीदी अभी भी मेरे पास शाम को 4:45 से 7 बजे तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है। मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। अभी सेकेंड लॉकडाउन से मैंने शुरू किया और ये मेरा जारी है। और दीपा दीदी अभी भी ऑनलाइन में मेरे पास रोती है। तो बेटा हार्ड वर्क करने से आप लोग दीपा दीदी जैसा बन पाओगे, नहीं तो इससे अच्छा भी बन सकते हो। अगर दीपा दीदी से भी हार्ड वर्क करोगे तो आप लोग अच्छा बन सकते हो, ओलंपिक में भी पहुंच सकते हो। दीपा दीदी ओलंपिक पहुंच गया, आप लोगों को मालूम है सबको। तो आपने भी आगे 24 या 28 का ओलंपिक जो है उसका टारगेट रखो। सर से बात करो या मैडम के साथ बात करो, बात करके बस टारगेट लो, सर को बोलो प्रोजेक्ट बनाए, टारगेट रखे, तभी आप लोग बन सकते हो। बस मेरा यही कहना है, एज ए कोच आप लोग हार्ड वर्क करो, तभी अच्छा जिम्नास्ट बन पाओगे। थैंक यू वेरी मच। मंगल साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ओके, थैंक यू मिस्टर नदी और द्रोणाचार्य। और आपकी जो बातें हैं वो सब ध्यान रखेंगे बच्चे। और हमारा भी यही प्रयास है कि बच्चे घर में रह के अच्छी ट्रेनिंग करें ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे और जब लॉकडाउन खुले तो वो अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सके।
thank you. Thank you very much, Patania. And Thank you, Sandeep, for coming, joining this program. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Yeah, Patania, can अच्छा I leave? अभी देखो दीपा कर्माकर ज्वाइन किए हुए. लेट दीपा कर्माकर also say few words. Let these young kids be encouraged by her. Dr. Deepa Karmakar. Yes, sir. Introduce her, sir. Introduce her. मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. मैं डॉक्टर दीपा कर्मकर, वेल नोन जिम्नास्ट, और आप बच्चों को मालूम है कि इनको वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट का इनको अवार्ड मिला है FIG द्वारा. ये सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड क्लास. हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. इतना बड़ा अवार्ड लेने वाली डॉक्टर दीपा कर्मकर, इनके पास इतना इन्होंने इंडिया के लिए किया है, इंडिया का नाम ऊंचा किया है, शायद हम सोच भी नहीं सकते थे. और बहुत हार्ड वर्कर है और एक हमारे ये मॉडल है पूरे बच्चों को. हम सबको बोलते हैं कि यदि जिम्नास्टिक करना है तो दीपा की बॉडी देखो, दीपा की ट्रेनिंग को, आपको जरूर फायदा मिलेगा. तो मैं डॉक्टर दीपा कर्मकर को इनवाइट करता हूँ, बच्चों को जरा मोटिवेशन के शब्द बोलें. दीपा. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सारे जितने भी बच्चे सबको गुड मॉर्निंग. सच में अभी हमारे लिए बहुत टफ टाइम चल रही, क्योंकि ये जो कोरोना बहुत दिन से 3 महीने होने जा रहे कि हम घर पे. बट मुझे लगता है इस टाइम हम बहुत फायदा उठाना चाहिए कि तो जिनकी कोचेस है इनसे बात करके आप अपने फिटनेस लेवल और स्ट्रेचिंग, जो भी पूरे बॉडी का जो स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग पार्ट है वो आप बढ़ाइए. कि हम जब जिम में जाए और हमें कोई फिटनेस की कमी ना नजर आए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कुछ भी एलिमेंट सीखने के टाइम कि हम लोग शायद फिट में, तो हम फिटनेस पे ज्यादा जोर देते हैं. तो अभी ये टाइम है हमारे पास कि हम फिटनेस पे स्ट्रॉन्ग करें. जब हम जिम में जाए ऐसा लगे ही ना कि हम अनफिट है. तो मैं सारे बच्चे को बोलूंगी कि आप घर पे है सब लोग, और घर पे रह के अपने फिटनेस ट्रेनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए. और मैं भी अभी भी करती हूँ, अभी भी मेरा 2 टाइम सेशन चलती है इवनिंग सर, 2-2.5 घंटा ट्रेनिंग कराते हैं हमें ऑनलाइन फिटनेस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर में रह के ज्यादा फिट हो गई. तो मैं सारे बच्चे को वही बोलना चाहूंगी, जैसे आपकी कोच है, जैसे मेरा सर नंदी सर मुझे पूरा ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे आप लोग भी अपने कोच के साथ बात करिए और फिटनेस ट्रेनिंग करिए. क्योंकि बिना फिटनेस के जब हम वापस जिम में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जिम्नास्टिक्स ऐसा एक गेम है, अगर हम उसमें फिटनेस ना रखे, ये 2-3 महीने के बाद जिम जाते पूरा जाते, पूरा स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा. तो मैं सारे छोटे छोटे जूनियर्स बच्चे से सबको बोलूंगी कि आप लोग फिटनेस रखिए, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपके पास पूरा 100% फिटनेस होगा तो ऐसे आपके एलिमेंट आ जाएगा. तो आप लोग भी करिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो आप लोग भी करिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो जूनियर्स है वो लोग इतना ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे. जैसे मैंने 4th फिनिश किया, वो लोग ओलंपिक में जाके मेडल लेके आए. तो मेरा पूरा विश रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से फिटनेस ट्रेनिंग करिए, और जैसे मेरे सर कराते और सब लोग ऐसे कोचेस अपने स्टूडेंट कराते. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर दीपा. आपने सब बच्चों को मोटिवेट किया और हम कोचेस को भी मोटिवेट किया है. और जिस प्रकार आपने बोला कि अपनी फिटनेस रखें, हमने भी प्रयास किया कि छोटे बच्चे ग्रास जिन्होंने अभी जिम्नास्टिक शुरू की है या जो जिम्नास्टिक करने जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक फिटनेस प्रोग्राम बनाया है, उनको ध्यान में रखते, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए. और जिस प्रकार का द्रोणाचार्य नंदी साहब ने भी बोला और आप भी बोल रहे हैं कि फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने भी बॉडी जो पोजीशन होती है, बॉडी फॉर्म होता है, उसको ध्यान में रखते हमने फिटनेस एक्सरसाइज कर रहे हैं. हम सिंपल फिटनेस नहीं कर रहे हैं, हम जिम्नास्टिक के जो मूवमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बेसिक, उनको ध्यान में रखते हमने दिए. और आपकी जो बेस्ट विशेष है होता है, नए हमारे जनरेशन है, नए बच्चे हैं. आप देखो अभी करीब 400 बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया के बच्चे इसको ज्वाइन करें. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपा. थैंक यू. with us I think द्रोणाचार्य DK राठौर is also there. मंगला जी वो ज्वाइन तो किया था लेकिन अभी पता नहीं दिख नहीं रहे. He's there. I'll just unmute him. हाँ अनम्यूट कर दीजिए मैडम. हाँ जी. we have with us another first Dronacharya of India, the Shri DK Rathore.
Chief Coach, Head of the Department of Gymnastics, NIS Patiala. I invite him. मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो बच्चों को मोटिवेट करें और 2 शब्द बोलें। श्री DK राठौर। राठौर साहब। राठौर सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट कर पाएंगे। हेलो। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए सर। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज यार, बोलिए। श्री DK राठौर साहब बोलिए। वेरी गुड। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है बच्चों, इसमें अच्छी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच राठौर साहब। तो और भी जितने भी हमारे जिम्नास्टिक फैमिली के लोग ज्वाइन किए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे सब एक्सपर्ट की तरफ से। और अब हम अपना आज का जो प्रोग्राम है हमारा, केवल आज हमारा प्रोग्राम आज है इंस्ट्रक्शन देना, उनको एजुकेट करना, किस प्रकार से ट्रेनिंग करना है और किस प्रकार से जो एक्सरसाइजेज दे रखी हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है, और जब अगली क्लास हमारी बुधवार को होगी उस टाइम से हम प्रैक्टिकल क्लास शुरू करेंगे। Sir, I have two words. Please, sir. Arjuna Wadi, Miss Kurpali Patel also joined. Let her come and say some few words. Okay, sir. Madam Kurpali. Yes. You are welcome here on behalf of all our participants and from our technical expert group. Please speak out some motivational word for the gymnast. Madam Kurpali. Namaste to all my colleagues, my seniors. सब मेरे गुरुजन यहाँ पर है, मेरे सीनियर्स हैं, नंदी सर है, दीपक करमारकर है, and I am really very much thankful to Sports Authority of India and Gymnastics Federation of India that they have thought on this very basic topic and very important topic to keep the kids busy with their fitness. जो जिम्नास्टिक्स के लिए हम सबको मालूम है कि बहुत ही हार्ड कोर रिक्वायरमेंट है, और ये जो सेशंस शुरू किए हैं बच्चों के साथ, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही सिस्टम से, एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ जो ट्रेनिंग अब शुरू करेंगे ऑनलाइन, ये बहुत बढ़िया हमारे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। आगे चल के ये सेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन द ट्रेनिंग एंड इन द, यू कैन से द परफॉर्मेंस वाइज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग नंदिता, I think this will help our gymnastics level, it will develop. And thank you very much for inviting me and allowing me to say few words. मैं बच्चों को बोलूंगी खूब मेहनत करो, खूब सीखो। ये जो लोग आपको सिखाने वाले हैं ये बहुत बड़े अच्छे गुरुजन हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। एंड रोहित जायसवाल जी हैं जो एक्सपर्ट है, एंड ही इज आल्सो आई थिंक द फर्स्ट मेडलिस्ट एट इंटरनेशनल लेवल। तो इनसे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपा, थैंक यू मैडम कुरपाली, आपने बहुत अच्छा मोटिवेटिंग स्पीच दिया, बच्चे इससे इंकरेज होंगे। सर इनको ब्रीफ कर दो सभी प्लेयर्स को कि ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, दैट विल बी। मैं कर रहा हूँ मैडम, अभी पठाना साहब भी ब्रीफ ही करना है। आज के जो प्रोग्राम है इनको जनरल इंस्ट्रक्शन देना है, क्यों कोर्स कर रहे हैं और कैसे करेंगे। आज यही आज केवल ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो शुरू करें मंगला साहब। यस सर, यस सर। हाँ, देखिए आज का जो हमारा प्रोग्राम, आज से जो प्रोग्राम 1 महीने का प्रोग्राम होगा, और आज की जो क्लास है हमारी वो इसलिए है कि हमारा जो क्लास किस प्रकार से होगा और ये क्लास हम क्यों कर रहे हैं, और इसके लिए मैं सभी जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इनके साथ बैठ जाएं और उनको सुने, ताकि अभी हमारे टाइम पे जो कोच है वो पेरेंट्स ही हैं। हम तो खाली टीवी और ऑनलाइन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पर एक्चुअल जो कोच है प्रेजेंटली उनके पेरेंट्स है, उनके गार्जियन है या उनके बड़े भाई हैं, बहन है, तो वो भी इसको सुने और इन बातों को आप ध्यान रखें जो हम दे रहे हैं।
और दूसरा है कि सबके पास हमारी प्रोग्राम की कॉपी पहुंच गई है, पीपीटी पावर प्रोजेक्ट जो हमारा पहुंच गया है, और उसमें हमने सभी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सभी एक्सरसाइज के हमने पिक्चर दे रखे हैं, और सभी उसके अंदर लिंक दे रखा है। यदि आपको एक्सरसाइज समझना है तो यूट्यूब पर जाके उसको खोलें, उसी स्लाइड के ऊपर आपको उसका एक्चुअल फोटो मिल जाएगा। तो मैं सबको फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स और गार्जियन जो भी साथ में, वो कृपया अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं और इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने। अब आप लोगों को सबको मालूम है कि इस समय पूरी दुनिया एक बड़ी भयानक बीमारी से पीड़ित है, जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज, ये सब जानते हैं। और इसी के कारण इससे बचने के लिए आजकल हम सब अपने घर के अंदर हैं, इसको बोलते हैं एकांतवास, घर में एकांतवास। पहले एकांतवास का नाम सुना होगा कि साधु लोग महात्मा जाते थे पहाड़ पे एकांतवास। तो जब एकांतवास में जब आदमी जाता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, भीड़ में नहीं होता है। तो हम सब एकांतवास है, पर इस बीमारी से, इस एकांतवास से सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के लिए, सभी के लिए हो रहा है, कोचेस के लिए हो रहा है, टीचर्स के लिए है, पर सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी को खेलना होता है, प्रैक्टिस करना होती है, और उसको इस समय उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो हम सभी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हम भी जानते हैं कि जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके अंदर बड़े इक्विपमेंट चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए, तभी जिम्नास्टिक पॉसिबल है। हाँ, जो स्पोर्ट्स हैं जो कुछ कर सकते हैं हम, तो अपने घर में कर सकते हैं, जो वो है हमारी फिजिकल फिटनेस। यदि आपकी फिजिकल फिटनेस है, आपकी बॉडी शेप की एक्सरसाइजेज आप करते रहें, तो आपके अंदर जो जिन्होंने जिम्नास्टिक शुरू कर ली है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी, और जिसने जिम्नास्टिक शुरू करनी है और इस क्लास को ज्वाइन भी किया, वो कुछ इससे सीखेंगे। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज हमने सिलेक्ट किए, वो जिम्नास्टिक की जो स्किल होती है उससे ये रिलेटेड एक्सरसाइजेज है, बिल्कुल जैसे हम आगे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसकी जो हर एक्सरसाइज की जो पिक्चर और कैसे होता है, ये हम इसके बाद में आपको बताएंगे। पहले मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है छोटे बच्चों को कराने के लिए, इसलिए हमने ग्रास रूट बच्चों के लिए क्लास रखी है, क्योंकि जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो समझदार हैं, जानते हैं, उनके कोच के इंस्ट्रक्शन है, कोच देते हैं, उस प्रकार का कर सकते हैं। पर छोटे बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है, तो उनको फिजिकल टच जरूरी है। तो हमने छोटे बच्चों के लिए किस प्रकार से हम उसको इस दौरान, इस कोविड-19 के पीरियड में दौरान कैसे उनको हम ट्रेनिंग करें, इसके लिए हमने, सरकार ने जो हमारा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको बोलते हैं प्रशिक्षण और शिक्षा का कार्यक्रम, और इसका नाम दिया है खेल पाठशाला। वे पढ़ने की पाठशाला तो सुनी होगी आपने, ये खेल पाठशाला है। इस खेल पाठशाला में खेल की बात होगी, और किस प्रकार से हम उसको ट्रेन करें और कैसे उसको एजुकेट करें, दोनों बात। यहाँ एजुकेशन बच्चों का भी है और ये एजुकेशन पेरेंट्स का भी है। तो पेरेंट्स जो है वो यदि इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल प्राधिकरण और संयुक्त रूप से जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है। और इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि लॉकडाउन पीरियड में हम किस प्रकार से अपनी पर्सनल फिटनेस की ट्रेनिंग किस प्रकार से करें। जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे हैं वो उनको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और हम यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, 4-5 एक्सपर्ट हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और आपको बताते भी जाएंगे कौन बच्चा अच्छा कर रहा है नहीं। परंतु जो पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक्सरसाइज करेंगे वो बच्चा कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए ऑनलाइन पे ट्रेनिंग कराना बहुत मुश्किल है, खाली हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि किसी प्रकार से हमारा ये सक्सेसफुल हो, ताकि बच्चे अपनी फिजिकल फिटनेस कर सकें। जो थोड़े बच्चे ज्यादा जितना 1-2 साल के करके उनको बहुत फायदा होगा, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। हमारे नंदी सर और सब पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में हर कोच अपने बच्चे को ऑनलाइन करा रहा है। पर आप खुद पूछना बच्चे से, जो बच्चा पहले एल होल्ड नहीं कर रहा था, वो इसी ट्रेनिंग के कारण वो 3 सप्ताह बाद वो एल होल्ड करने लग गया। ये हम प्रोग्रेस मानते हैं, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग होगी। तो कुछ हमने कुछ इस टीचिंग ट्रेनिंग के लिए कुछ हमने जनरल इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शंस हैं, वो सभी को ध्यान रखना है। सभी पेरेंट्स नोट करें, सभी जिम्नास्ट नोट करें। ये जो भी जिम्नास्ट इसमें भाग ले रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सावधानी पूर्वक इस प्रोग्राम को करें।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स है, ये रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ये बैडमिंटन नहीं है जहाँ की कोई चोट नहीं लगेगी, या टेबल टेनिस नहीं है, चोट तो हर जगह लगती है, पर ये ऐसा स्पोर्ट्स है, यदि गलती हो गया चोट लग जाएगी, इसलिए सावधानी और जिम्मेदारी पूर्वक ये एक्सरसाइज करें। जो बच्चा बीमार है या उसको चोट लगी है या और कोई अन्य कारण से वो ठीक नहीं है, वो जिम्नास्ट को हम सलाह देंगे कि वो इसमें भाग न लें, केवल वो अपने टीवी पे ऑब्जर्व करें। गर्मी का टाइम है, फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सभी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखें, पानी से भरी हुई, चाहे कि उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, और जब जब आपको बताएंगे उस टाइम आप सेव करें पानी का। सभी जिम्नास्ट अपने पेरेंट्स की देखरेख में करेंगे, ये बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की ड्यूटी है उनको सामने से बैठे बैठे उनको जो कभी वो सुन नहीं पा रहे हैं तो वो उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ तो आएगी नहीं हमारे पास, तो बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग की प्रॉपर किट होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जिम्नास्टिक ये क्लास शुरू होने के पहले, हमारी तो 45 मिनट की क्लास होगी, पर हम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी क्लास लेंगे, तो आपकी क्लास लेंगे, वो आपको डायरेक्शन देते रहेंगे, उस पर ज्यादा जोर देना, करने से ज्यादा जोर देना है उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तभी आपको इसका असर होगा। अभी सामान की क्या, घर में क्या सामान हो सकता है? जिम्नास्टिक एपरेटस तो हो नहीं सकते, और बच्चों के तो हो ही नहीं सकते, बड़े बच्चे तो रख भी सकते हैं, पैर लेट सकते हैं कुछ, तो बच्चे के लिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। कम से कम 2 बाई 3 मीटर की जमीन हो, खाली स्पेस हो, उस पर एक हम एंटी स्लेवरी कोई कारपेट डाल दे तो काम चलेगा। हम बाहर भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं। एक वुडन स्टिक 1 मीटर के लगभग, और जैसा हमारा हाई बार रहता है ना 28 mm का होता है, वो उतना गोलाई की हो, वो हो, या कोई कपड़ा हो, या कोई स्कीपिंग रोप हो, या कोई खाली बॉटल भी हो, उससे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये इक्विपमेंट हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं, इनको रखें और उससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो हमारी जनरल होगी। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये है सभी के लिए कि जैसे एक्सरसाइज करने से आपको ज्यादा फायदा मिले, उसके लिए हम वादा करें। फायदा तो आपको मिलेगा, पर फायदा के लिए आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें कि जो हम ट्रेनिंग कराते हैं या कोचिंग कराते हैं, इसकी एक फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी मतलब इस प्रकार से कराते हैं, इसके पीछे क्या एम ऑब्जेक्ट है वो समझे। जो जिम्नास्टिक है वो ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई निरस्ता है, कोई वो नहीं है, जैसे कोई जिस प्रकार दूसरे गेम में हम एंजॉय करते हैं, बैडमिंटन खेल के एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेल के एंजॉय करते हैं, पर जिम्नास्टिक में तो केवल रेपिटेशन 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 रेपिटेशन। तो हम एक दूसरी बोरिंग, तो बोरिंग ना हो उसके लिए हमारे फिलोसफी के पॉइंट हैं। फन मतलब एंजॉयमेंट, फिटनेस जो हम प्रोग्राम देंगे आपको वो, इसके बाद हम जिम्नास्टिक की स्किल कर सकते हैं अब जब लॉकडाउन खुलने के बाद, और उसके बाद फ्रेंडशिप। ये 4 ऐप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेनिंग के लिए, किसी भी गेम के लिए। जिम्नास्टिक्स में बहुत ज्यादा है, फन से ज्यादा, फन जो फैक्टर है, जो एंजॉय करने वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम्नास्टिक्स के अंदर आपको बोरिंग ज्यादा है, रिपीट करना है। यदि हम देखें कई और भी स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, डाइविंग है, स्विमिंग है, वहाँ कोई रिक्रिएशन नहीं है, बस आपको दौड़ना ही दौड़ना है। यदि मैराथन के रहनी है तो 50-60 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है, और खाली आपका जो साथ टाइम दे सकता है एक म्यूजिक। तो फन के लिए हम जब भी ट्रेनिंग करें एक म्यूजिक बजाएं, और म्यूजिक बजाने से आपका जो फन भी होगा और आपको एक रिदम भी मिलेगा करने के लिए। तो म्यूजिक एक फन हो सकता है, और फन के लिए हम ग्रुप में करें, हालांकि अभी ग्रुप पॉसिबल नहीं है, पर जितना आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे वो फन हो जाता है और आपको ट्रेनिंग करने में अच्छा लगेगा। जब फन होगा तो आपकी जो फिटनेस करेंगे उसमें भी फन होगा, तो आपकी फिटनेस ज्यादा होगी। जब फिटनेस आपकी ज्यादा होगी तो जिम्नास्टिक की जो फंडामेंटल मूवमेंट सीखने में मदद मिलेगी, और आपने फ्रेंडशिप होना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, तब ये बोरियत हमारी खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये 4 फैक्टर को ध्यान रखें, फन, फिटनेस, फंडामेंटल एंड फ्रेंडशिप, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज बोरिंग गेम में करना मुश्किल है। फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा आपको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पे ध्यान देना है।
क्वांटिटी पे नहीं, क्वांटिटी सेकेंडरी एस्पेक्ट है, पहले क्वालिटी, जो पोजीशन बताइए उसको उसी प्रकार से करना है और उस एक्सरसाइज को उस ढंग से करेंगे तभी आपके बॉडी के ऊपर इसके ऊपर असर होगा। जो मसल्स इन्वॉल्व हैं आपके इसमें वही ट्रेंड होंगे जो आपके बड़े स्केल में काम आएंगे। जो फ्यूचर में कोई आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल आपको काम आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें बॉडी के अंदर टेंशन होना, रिजिड होना। इसको रिजिड होने का मतलब समझना आना चाहिए। रिजिड होने का मतलब है कि बॉडी में खिंचाव होना चाहिए। जिस प्रकार एक रस्सी होती है ढीली, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होता है तो कोई फोर्स ही नहीं लगता है। तो हमारे इसमें बॉडी के अंदर फोर्स ट्रेवल करता है, घूमता आगे से ऊपर, इसलिए बॉडी के अंदर टेंशन होना जरूरी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारा पेरेंट्स के लिए। देखो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनका भी इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे बड़ा रोल है। इनका रोल है पेरेंट्स का कि जो पेरेंट्स इन बच्चों की एक डायरी तैयार करें, 1 महीने के लिए डायरी तैयार करें। उस डायरी के अंदर आप बच्चे की प्रोग्रेस लिखें डेट वाइज। आज क्या प्रोग्राम किया, सपोज हमारी 41 42 एक्सरसाइजेस हैं वो हमने कराई, क्या आपके बच्चे ने 42 एक्सरसाइज की या नहीं की, खाली इतना ही लिखना है कि पूरी नहीं की। कितनी नहीं की, 5 नहीं की एक्सरसाइज उसने, कौन सी नहीं की वो नोट डाउन करे। बच्चों को आप बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको करना है और उसके बारे में लिख सकता है कि वो करने का उसका कितना इंटरेस्ट है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि पेरेंट्स आपको उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है, तभी हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। नहीं तो खाली ऐसे टीवी पे देखना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो उनकी डायरी लिखें, उसमें उनका प्रोग्रेस लिखते रहें। और सबसे एक इम्पोर्टेंट आज मैं बताना चाहूंगा, हम मालूम कर सकते हैं अपने आप, हम तो नहीं मालूम कर सकते हैं कितनी ट्रेनिंग हुई, हम प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। जो 40 मिनट की क्लास हुई है उस क्लास के अंदर के लिए सबसे बढ़िया हमारे पास है घर में, वो है हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट किस प्रकार से, जैसे आप देखो, कैन यू ऑब्जर्व मी, मंगला साहब दिख रहा है? यस 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 सर। हाँ देखो, कोशिश करो देखने के लिए। ये जो हमारा हाथ होता है, हमारी ये 3 उंगलियां, दूसरा ये लेफ्ट हैंड है और इसको अंगूठे पे रखो और ये कलाई के यहाँ ले आओ। इट इज विजिबल मंगला साहब? यस सर। अब यहाँ पर आप सेंसेशन देखो, जो बीच वाली उंगली पे आप कुछ हार्ट बीट जैसे धड़कन जैसा महसूस होगा, पहले महसूस करना है बीच वाली उंगली पर। और इस जो धड़कन को, इस हार्ट बीट को थोड़ी देर आप महसूस करो और इसके बाद घड़ी के अंदर 10 सेकंड में इसको काउंट करना है। इसको काउंट करना है 10 सेकंड में कि ये कितने बार धड़की। फॉर एग्जाम्पल यदि आपकी 12 बार धड़कती है, 13 बार करती है, 14 करती है, ये जो आंकड़ा है इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये आपकी हार्ट बीट आ जाएगी। जैसे यदि आपकी 12 आई तो आपकी 72 हो जाएगी हार्ट बीट। ये आपकी शुरुआत, जब लेक्चर शुरू करेंगे, जब क्लास शुरू तभी आपको लेना है। और इसके बाद हम एक बार लास्ट में भी बोलेंगे एक्सरसाइज को, तब भी आपको लेना है। ये बच्चा खुद भी ले सकता है यदि आ गया, नहीं तो पेरेंट्स भी ले सकते हैं। तो इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो आज का ट्रेनिंग सेशन आपके बच्चे ने किया है वो कितना इफेक्टिव रहा है। अब ये हार्ट रेट 72 है, 72 है और ट्रेनिंग के बाद भी 75 होगी, इसका मतलब आपके बच्चे ने एक्सरसाइज नहीं की है। ये लगभग 100, 110, 115, 20 यदि जारी है तो हम कह सकते हैं कि इन एक्सरसाइज के करने का आपके बॉडी पे फायदा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स का ज्यादा रोल है। यदि समझदार बच्चे हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं और इसको अपने डायरी पे लिखें। हर दिन की जो हार्ट रेट है वो आप लिखते जाएं कि मेरी हार्ट रेट स्टार्टिंग ये थी और आफ्टर ट्रेनिंग इतनी थी। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा बच्चा होता है उसकी हार्ट रेट थोड़ी कम होगी कि वो ट्रेंड है, पर जो कम बच्चा तैयार नहीं है, बिगिनर, उसकी ज्यादा हो सकती है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा अबाउट जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने पिक्चर भेजी उसके बारे में दूंगा। इसमें देखेंगे कि आप वो स्लाइड दे रखी है, उस स्लाइड के ऊपर बच्चों के पिक्चर दे रखे हैं, कैसे करना वो लिखा हुआ है। और ये जो पिक्चर के नीचे आप देखेंगे तो एक YouTube लिंक दे रखा है, जो हम यहाँ नहीं चलाएंगे, आप अपने घर में चला सकते हैं। यदि उसको क्लिक करेंगे उसको, तो आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज दे रखी है वो किस प्रकार से करना वहाँ देख सकते हैं। हालांकि हमारा जब क्लास चलेगा तो हमारा
परफॉर्मेंस आप देख पाएंगे। हमारा जो एक जिम्नास्ट है वो करेगा, आपको देख के भी कर सकते हैं, पर यदि आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में इसको लिंक खोल के उस एक्सरसाइज को दबाएं, उस यूट्यूब लिंक को दबाएं, आपको उस एक्सरसाइज के बारे में पूरा मालूम पड़ जाएगा। एक आपको बात बताना चाहूंगा, जो इसमें बच्चों की जो पिक्चर दे रखे हैं वो हमारे सब इंडियन बच्चे हैं, बडिंग जिम्नास्ट हैं, पूरे इंडिया के बच्चे हैं वो। ये हमारा एक प्रकार के मॉडल है, और हम कह सकते हैं कि ये बच्चे जो आज हमने 2020 में दिए हैं, 2032 के अंदर इनमें से कोई जिम्नास्ट जरूर इंडिया के लिए आगे आएगा। अभी वो ट्रेनिंग करेंगे तो ये बच्चे देखेंगे, हर स्टेट के बच्चे लिए हैं, कोशिश की है, उनके पिक्चर दिए। हमारा एम यही है कि सभी बच्चों को मोटिवेट करना, और ये बच्चे हमारे सभी जो जिस स्टेट से लिए हैं वहाँ की ये बेस्ट स्टूडेंट हैं, और ये बच्चे हैं छोटे 10 से 12, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का है। तो हम होप करते हैं कि जो हमारा 2032 में जो ओलंपिक होगा, 28 के बाद 32 में होगा, तो डेफिनेटली इन्हीं बच्चों में से हमारी इंडियन टीम बनेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये हमारी टोटल जानकारी मैंने आपको अपने प्रोग्राम के बारे में दी है, और आई होप ऑल पेरेंट्स विल फॉलो, दे विल। ये पीपीटी में भी लिखी हुई है, वहाँ इंग्लिश में लिखी है, मैंने यहाँ हिंदी में बताई है। तो मैं अब स्क्रीन के ऊपर आता हूँ अपने। रोहित, शेयर करूँ मैं? सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए सर। डॉक्टर कल्पना देवना अर्जुनावाड़ी, she also joined. Let her say some words to. Okay. We are very happy that Dr. Ms. Kalpana Devnath is with us. She is Arjun Awardee, and she retired from the Sports Authority of India from the academic wing. I request her to say few words, motivational words to the joining kids. Dr. Sir, I can't find her. Has she logged in with her name? iPhone, ma'am. iPhone. Just wait a second. There are 2 iPhones. Ma'am, could you please kindly rename yourself so that I can unmute you? मैडम कल्पना, आवाज आ रही है? एक बार निकिता मैम को चेक करना पड़ेगा। वो एक्चुअली वो मैम का वीडियो अपने आप को मुझे बट मैं उनको लाइक आई कांट लुक फाइंड हर, शी हैजंट लॉग्ड इन विद हर नेम। पठान साहब दिखे आपको कहीं? हाँ मेरा ख्याल दिखे थे ना मेरे। अगर किसी को-होस्ट को दिख रहा है तो आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे उनको। एक बार मैं ट्राई करता हूँ मैम। हाँ ठीक है, ट्राई करिए। शायद वो अनम्यूट करेंगे तभी होगा, वो मेरे म्यूट हो रखे हैं, पर पिक्चर भी नहीं आ रही, पिक्चर भी नहीं आ रही कहीं पे। तो मंगला साहब, इसके बाद मैं ये शुरू करूंगा फिर शेयरिंग स्क्रीन। ओके, वी कैन डू वन थिंग। अभी आप प्रोग्राम शुरू करें, और जैसे ही कल्पना देवनाथ हमको दिखेंगी उस टाइम में बीच में रोक के वी कैन आस्क हर, वी कैन रिक्वेस्ट हर टू से फ्यू वर्ड्स। ओके ओके सर, ओके, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। हाँ, ये मिस्टर अशोक मिश्रा भी हैं हमारे साथ। हाँ चलो, मैं अब कर देता, इसको पहले कर दूँ। या ये क्या आ गया? चलो खुला से आएगा खुलेगा। यस, खुल रहा है अभी। अभी आए तो बीच में बता देना मंगला समय। हाँ सर, अभी तक आया नहीं। चलो, हमारा भी खेल पाठशाला खुल रही है। सर ये रन करो पहले। नहीं, ये तो मेरा खुला हुआ है, तो जूम तो खुला हुआ है मेरा, जूम खुला हुआ है। ये तो दूसरा फॉल्ट है, जूम तो खुला हुआ है मेरा। डबल क्लिक करो ना, खुलेगा सर थोड़ा। ये खुल गया सर? यस आ गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। फुल स्क्रीन करो सर। लो जी सर, फुल स्क्रीन कर देते हैं सर।
ये लो जी फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है सर। ओह गुड। ये भी सब सीख रहे हैं। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। दिस इज वेबिनार आईडी सबके पास है, इसी से आप ज्वाइन करेंगे। और these are our experts for online coaching and education program for grassroots level athlete under the Khel Pathshala. Myself, Nirbhay Singh and RN Mangala, Shri Rohit Jaiswal, Madam Sandhya Kaul and Dr. P. Ravinder. मैं चाहूँगा कि इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा है खुद का ज़्यादा देने अच्छा लगेगा, फिर भी मैं रिटायर्ड साई एम्प्लॉय हूँ और बीएससी और एमए किया है, मास्टर इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है और इंटरनेशनल जज भी रहा हूँ। और एमपी स्टेट से एक स्टेट अवार्ड होता है विक्रम, उसका मैं रिसिपेंट हूँ। फॉर्मर इंचार्ज इन चीफ फॉर जिम्नास्टिक डिपार्टमेंट एनआईएस पटियाला। Our next expert is Shri R.N. Mangala, very senior gymnastic coach, और इन्होंने बीएससी किया है, इन्होंने भी मास्टर इन स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा लिया है और ये हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल जज हैं। और इन्होंने 1982 में जो हमारे एशियन गेम्स हुए थे उनमें इनमें जजिंग किया था। ये भी फॉर्मर इंचार्ज और चीफ कोच जो हमारा साई नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर है कोलकाता में, वहाँ पर 1982 से लेके 1986 तक इन्होंने काम किया है। इनके पास बड़ा रिच कोचिंग एक्सपीरियंस है 36 इयर्स का। ये जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2010 में, उस टाइम ये इंडियन टीम के स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे। ये मंगला जी ने जो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का न्यूज़ बुलेटिन भी ये छापा है 2008 से लेके 2015 के बीच में। और प्रेजेंटली आजकल ये एक न्यूज़ बुलेटिन वो निकालते हैं महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्टिक एसोसिएशन का 2015 से। और मंगला जी के पास पूरे जिम्नास्टिक के रिजल्ट मिलेंगे आपको 1952 जब से हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसके आज तक इनके पास पूरे रिजल्ट हैं। नेक्स्ट एक्सपर्ट इज मिस्टर रोहित जायसवाल। ऐसा सबने बोला है, यंग हमारा एनर्जेटिक एक्सपर्ट है और यही आपकी क्लासेस लेंगे, यही हमारा रिसोर्स पर्सन होंगे। ये पहले जिम्नास्ट है जिन्होंने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया 2003 में, जो कि चाइना में हुई थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 2004 में हुई थी। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल अवार्ड दिया है और इसी प्रकार से इनको एक लक्ष्मण अवार्ड, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स अवार्ड है, वो अच्छे खिलाड़ियों को देते हैं, ये इन्हें प्राप्त किया है। ये इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं, जो कि यूथ ओलंपिक गेम्स चाइना में 2014 में हुए थे, वहाँ पर ये कोच रहे हैं। क्वालिफाइड FIG इंटरनेशनल कोच हैं लेवल 3 के, और 2 इंटरनेशनल जज भी हैं 13 साइकिल की। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं मैडम संध्या कौल, इंटरनेशनल जिम्नास्ट, एक्सपीरियंस कोच। एट प्रेजेंट शी इज चीफ कोच एंड वर्किंग इन चंडीगढ़। इन्होंने सभी जूनियर सीनियर इंटरसिटी कंपटीशन में भाग लिया है और मेडल लिया है। इंडियन टीम की ये मेंबर भी रही हैं, जो चाइना में 1982 में गया था। इनके पास इंटरनेशनल जज लाइसेंस भी था 8th साइकिल का। ये इंडियन टीम की कोच भी रही हैं जूनियर एशियन चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में, और एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो हिरोशिमा में हुई थी 1994 में, वहाँ पर ये जज का काम किया। ये जो साई की एक एक्सपर्ट पैनल बने थे, उसके एक मेंबर भी हैं, एक्सपर्ट पैनल कोचेस हैं। और प्रेजेंट में ये खेलो इंडिया के TCSC के मेंबर हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं सबसे पढ़े लिखे कोच डॉक्टर P. रविंद्र कुमार। इन्होंने मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में, मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स कोचिंग में, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में किया। इन्हें फिजिकल एजुकेशन में MPhil और फिजिकल एजुकेशन में PhD भी की है। इन्होंने NICE से डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन कोचिंग। इन्होंने एक स्पेशल डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का किया है काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल से। इनके पास इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स का भी डिप्लोमा है
जो कि उन्होंने बुडापेस्ट हंगरी से किया है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, नेशनल और ऑल इंडिया इंटरस्टेट चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल मिला है और इन्होंने कई नेशनल कैंप भी अटेंड किए। तो ये हमारे सभी एक्सपर्ट की जानकारी थी। ये मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर चुका हूँ कि भी हम क्यों अपनी जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमें क्यों ज़रूरी होगी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। ये इंग्लिश में है। इसके बाद मैं दूसरी इसमें जाता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन थे मैं हिंदी में समझा चुका हूँ कि भी हाउ जिम्नास्ट शुड प्रैक्टिस, what is the role of the parents, what important instruction they should follow, what equipment they require, and how to maintain the diary and how to take the heart rate. This is our program of physical fitness. तो आप देखेंगे सबसे पहले हम मोबिलिटी एक्सरसाइज और थोड़ी वार्म अप करेंगे। मोबिलिटी एक्सरसाइज के बाद फिर हम कंडीशनिंग एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्पेशल ड्रिल के थ्रू। कंडीशन एक्सरसाइज कई प्रकार से हो सकती है पर ये हम स्पेशल ड्रिल के साथ करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी एक्सरसाइजेस। तो ये हमारा रूटीन प्रोग्राम होगा सभी प्रकार से, और ये हमारी 45 मिनट्स की क्लास होगी। आप देखेंगे एक चार्ट दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपकी की एक्सरसाइज जो एंकल रोटेशन है या आपका शोल्डर रोटेशन है या हिप रोटेशन है या नी बैंड है, वो किस प्रकार से करना है, उसका काउंटिंग कितना कैसा होगा और कितने बार उसको रिपीट करना है। तो मैं सीधे एक्सरसाइज के ऊपर आता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा और एक्सपर्ट भी बताएंगे हमारे रोहित जायसवाल कि ये एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए। ये पिक्चर में देखें, ये रिस्ट एंड एंकल रोटेशन है। इसके नीचे देखें आप लिंक भी दे रखा है YouTube B6 XS4 UTPL। यदि इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका लाइव वीडियो आपको दिखेगा। तो रिस्ट एंड एंकल रोटेशन हम करते हैं, हाथ के रोटेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड होंगे और उसी के साथ लेफ्ट लेग का आपका एंकल रोटेट होगा और इसके बाद आपका राइट लेग का होगा। इसके बाद हमारा नेक को हमने स्ट्रेच करना है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और हम कह सकते हैं इसको रोटेशन भी कर सकते हैं लेफ्ट राइट एंड राइट साइड। इसमें नीचे बॉडी का पोस्चर देखेंगे कि आप टांग थोड़ी खुली होना चाहिए। ये केवल एक्सरसाइज आपकी नेक की है, तो नीचे वाली बॉडी केवल स्टेबल होगी, आपके हाथ कमर पे होंगे और हेड को रिलैक्स रखना है। शोल्डर रोटेशन, टांग खुली होना चाहिए। इस पिक्चर में टांग नहीं खुली है, थोड़ी टांग खुली होनी चाहिए शोल्डर विड्थ के बराबर, और हाथों को आपने घुमाना है और हाथों को रिलैक्स रखना है, स्टिफ नहीं रखना है, ज्यादा रिजिड नहीं। लोअर बॉडी आपकी फिक्स रहेगी, टांग खुले रहेंगे और 4 बार आगे और 4 बार पीछे करेंगे। ट्रंक रोटेशन सभी हम बच्चे करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें टांगे खुली होंगी और पूरा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके ट्रंक पे, कमर के ऊपर, वो घूमना चाहिए बड़ा सर्कल लेके, 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पिक्चर में आपको शायद ना इतना समझ में आए, आप यदि इसका लिंक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएंगे। ये है हिप रोटेशन। इसमें एक टांग को उठाना है साइड में और इसको रोटेट करना है, तो इसका हिप आपका रोटेशन होगा। अंदर हिप जॉइंट जो है एक टांग का, पहले बाएं का फिर दाहिनी टांग का। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हिप जॉइंट की है। इसको करने से आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, स्प्लिट सिटिंग और स्ट्रेडल सिटिंग, इसमें आपको फायदा मिलेगा और ऊपर वाली बॉडी आपकी फिक्स रहेगी, कमर पे हाथ रहेंगे। नी बेंडिंग जनरली हम करते हैं। नी बेंडिंग आपके बॉडी पोजीशन देख लें, थोड़ा सा टांग खोल सकते हैं, चेंज के करीब टांग खोलेंगे, हाथ नी पे होंगे और कोशिश ये की जाए जब आप नीचे जाएं तो जो आपके जो घुटने जो नीज हैं वो आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कुर्सी पे बैठते हैं पीछे की ओर, थोड़ा सा मुश्किल है। यदि नहीं मुश्किल है तो थोड़ा आगे जा सकते हैं, पर अच्छी तरीके से करना है तो आपके घुटने नीचे टो से आगे नहीं जाना चाहिए, तो इसका ज्यादा आपके बॉडी पे असर पड़ेगा। ये हमारी मोबिलिटी एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम आएंगे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, मतलब हमारे हार्ट और लंग्स के लिए एक्सरसाइज आएगी। ये एक्सरसाइज का इसमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये 8 एक्सरसाइजेज हैं। पहली 4 एक्सरसाइज और दूसरी 4 एक्सरसाइज। पहली 4 एक्सरसाइज को हम एक साथ करेंगे, इसमें लगातार करना जरूरी है। यदि हम लगातार नहीं करेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। तो हम देखेंगे 4 एक्सरसाइज है तो 40 सेकंड तक आप लगातार इसको करते रहेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं बिल्कुल पहले राउंड में। तो ये 40 सेकंड होगी तभी हमारा हार्ट या लंग्स काम करता है, इसके पहले नहीं करते हैं। और ये पहला जो राउंड है वो
होने के बाद हम 15 सेकंड का रेस्ट देंगे, और जब दूसरा राउंड इन्हीं एक्सरसाइज का होगा तो उसके बाद हम 40 सेकंड का रेस्ट देंगे। इसी प्रकार 45 मिनट्स का, सॉरी। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट की एक्सरसाइज है 5, 6, 7, 8, इनको लगातार करना है। इसी प्रकार इसको पहला रोटेशन होगा, 15 सेकंड का रेस्ट होगा, सेकंड रोटेशन होगा, उसका 45 सेकंड रेस्ट होगा। तो ये रिकवरी होगी। ये एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपका जो हार्ट लंग्स की ट्रेनिंग होगी, अच्छी तरह से आप ब्रीदिंग कर पाएंगे, अच्छी तरह ऑक्सीजन जाएगा, ज्यादा काम कर सकते हैं, पर लगातार करना जरूरी है। अब आते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस क्या क्या है। सिंपल जॉगिंग ऑन द स्पॉट। ये जो फोटो देख रहे हैं ये हमारे एक जिम्नास्ट है इंडिया की, महाराष्ट्र की जिम्नास्ट है, और ये गांव में रहती है। तो देखो वो गांव में से पिक्चर मंगाया तो वो नहीं कर पाई, पर बहुत अच्छी दौड़ रही है। तो ऑन द स्पॉट आपको जॉग करना है लगातार। इसके बाद आपको हाई नी रनिंग करना है, बॉडी रिलैक्स होगा, और कोशिश करो थोड़े घुटने आपके हिप लेवल तक आए, ये लगातार करना है। और ये भी हमारी जिम्नास्ट है, यंग जिम्नास्ट। इसके बाद है हील्स बैक किक ऑन द स्पॉट रनिंग। यू टू हिट योर बटक्स विद द हील, पीछे टच होना चाहिए और ऊपर की बॉडी नॉर्मल रिलैक्स रहेगी। इसके बाद हो गया हमारा सीजर जंप, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस पिक्चर से आपको शायद क्लियर ना हो तो आप नीचे YouTube लिंक को दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें आगे और पीछे टांग ले जाने हैं और आपको जैसा ऐसा लगा जैसे कि आप दौड़ लगा रहे हैं। इसके बाद आ गया हमारा जंपिंग जैक। सभी करते हैं, पर हमें इसमें ध्यान रखना, जंपिंग जैक करते वक्त हाथों की पोजीशन, टांग खुलना चाहिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, स्ट्रेट बॉडी, सिंपल जंप। जब हम जंप कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर हाथों का स्विंग होना चाहिए, हाथ हमारे ऊपर ओवरहेड जाना चाहिए, कान से लगे ऊपर, हाथ रिलैक्स रहेंगे, और जब हवा में जाएंगे तो पूरा बॉडी स्ट्रेच हो। देखो इसका टो भी स्ट्रेच है, कमर भी सीधी है, कोई बाहर आर्च नहीं बन रहा है, कोई हुक नहीं बन रहा है, ऐसा ऊपर जंप करना है और ये लगातार आपको जंप करना है। इसके बाद है जंपिंग ट्विस्ट। जंप करके आपको बॉडी को आपको शेक करना है, लेफ्ट राइट। ये आप यदि देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर इसको क्लिक करें, और अभी हमारा परफॉर्मेंस लाइव होगा, उसमें भी आप इसको देख पाएंगे। स्क्वाट सिट एंड वर्टिकल जंप। हाथ नीचे जमीन पे लगाना है और पूरा जब जंप करते हैं वर्टिकल तो पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। जब स्ट्रेच हो रहा है मीन्स एवरी बॉडी पार्ट, आर्म शुड बी अप, पेट अंदर, छाती अंदर, लेग्स सीधे, पंजा खींचा हुआ। तो ये हमारी सब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज थी और इनको हमने लगातार करना है। इसके बाद हमारी आएंगे एक्सरसाइज डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइज के अंदर हमने रिपीट करना है। देखो ये डिफरेंस देखो, वो भी रिपीट हो रहा था और लगातार हो रहा था। तो यहाँ पर एक एक एक्सरसाइज को हमने रिपीट करना है, तभी उस बॉडी पार्ट का या उस बॉडी पोर्शन का आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हमने यहाँ टाइम्स दे रखे हैं, 10 टाइम, 5 टाइम एंड सो ऑन। तो ये एक्सरसाइज हम यहाँ देखते हैं, ये देखो रेजिंग ऑन हील्स। इस समय आपको हाथ में लकड़ी पकड़ना है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पकड़ना है, रस्सी या रबर या कोई बॉटल। इसका मतलब हमारा अपर बॉडी का कोई काम नहीं है, उसको हमने फिक्स कर देना है। हेड की पोजीशन नॉर्मल होना चाहिए। देखो सभी जगह आपकी हेड की पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि हेड आगे जाएगा तो ये हमारी नीचे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, हमारा पीछे कुप निकल जाएगा, पीछे जाएंगे तो छाती बाहर आ जाएगी। इसलिए इसको नॉर्मल रखना है, हाथों को ऊपर खींच के रखना है और हाथ में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लकड़ी हो, रस्सी हो, कपड़ा हो या खाली बॉटल हो, और आपको हील के ऊपर हील रेस करना है, टो पे आना है। इसका रेपिटेशन दे रखा है, लगातार करना है। देन हमारा हो गया है स्क्वाट सिट। इसमें भी आपको लकड़ी पकड़ना जरूरी है। देखिए गर्ल्स ने कर रहा है, थोड़ी आगे झुक रही है, ऊपर वाला बॉडी फिक्स रहेगा, ऊपर बॉडी का कोई काम नहीं, केवल नी का काम है। और ऊपर तो जो 90 डिग्री तक आए तो बहुत बढ़िया है। और वही ध्यान रखना है कि आपके नी नीचे वाले जो पंजे उससे आगे ना जाए। आप देखें इसके थोड़े से नी आगे जा रहे हैं, इसको सुधारना है। इसके बाद हमारा आ गया लंजेस, आगे और पीछे टांग को मोड़ना है। और इसको अभी अच्छी तरह देखना चाहते तो लाइव परफॉर्मेंस देख लेना आप, नहीं तो यूट्यूब पर आप क्लिक करें तो आपको इसको एग्जैक्ट पोजीशन मालूम हो जाएगी। साइड स्क्वाट सिटिंग बहुत अच्छा किया है लड़की ने, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे सब यंग जिम्नास्ट हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं हम ट्रंक बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें लकड़ी पकड़ना बहुत जरूरी है। लकड़ी या ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है कि ऊपर वाली बॉडी हमारी सीधे रहे, केवल हमारी ट्रंक की एक्सरसाइज हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
इसमें आगे जाएंगे तो एब्डोमेन मसल है, पीछे जाएंगे तो बैक मसल, और इसमें टांग खोलना है। इस पिक्चर में टांगे नहीं खुली है, थोड़ा सा शोल्डर बीच में टांग खोलना तो अच्छा बैलेंस होगा और अच्छी तरह एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आएगा हमारा साइडवर्ड बेंडिंग। सेम ऊपर लकड़ी पकड़ना जरूरी है और बिल्कुल साइड हो, ना आगे झुके ना पीछे झुके, लेफ्ट और राइट जाना है और टांगों को खोल के रखना है ताकि आपका बॉडी के अंदर बैलेंस रहे। इसके बाद है हमारा जैक नाइफ। सबने करा होगा, लेट जाते हैं और फिर उनके ऊपर हम वी शेप बॉडी करते हैं। तो इसमें टांगे सीधी होना चाहिए, हाथ पे सीधे होना चाहिए और हेड भी साथ में जाएगा। ध्यान रखो, हाथ और हेड का एक कनेक्शन है। आप अपने हाथों से फील करो आपके कान को, तो वो महसूस देगा आपको कि आपका हेड आपके साथ जा रहा है। इसके बाद हम आएंगे बनाना रॉकिंग। बनाना टाइप डिश टाइप आपको बॉडी बनाना है। ऊपर हाथ खींचेगा, नीचे टांग खींचेगी, पंजा खींचेगा और आपको जैसे नाव आगे पीछे हमारी होती है उस प्रकार से आपको रॉक करना है, आगे पीछे साइड, बोथ साइड। यदि ना समझ में आए तो आप नीचे यूट्यूब है उसको देख लें, ये हमारा लाइव परफॉर्मेंस है। इसके बाद आ गया हमारा फ्लटर किक्स, मीन्स सीधे टांग रहेंगे, उनको ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट करेंगे। यदि समझना है तो आप यूट्यूब में देख लें या हमारा लाइव जो प्रोग्राम होंगे उसमें देख लेना। इसके बाद आ गया लिफ्टिंग ऑफ वन आर्म। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमने डिप में नहीं उठाना, ऊपर आने के बाद उसको हाथ हमने दूसरे अपोजिट शोल्डर पे लगाना है। सपोर्ट पोजीशन में जब जाएंगे हम उस टाइम में नीचे नहीं जाना है, डिप लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सीधे रहना है और एक बार लेफ्ट राइट हाथ उठेगा राइट कंधे पे जाएगा, फिर राइट हाथ उठेगा लेफ्ट कंधे पे जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द सिंपल डिप्स। यहाँ पे जो ट्रेंड बच्चा है वो तो कर लेगा, मतलब जो अनट्रेंड बच्चा है तो चाहे तो वो घुटने की सहायता ले सकता है, वो घुटने पे बैठे और केवल हाथों को करे, उसके लिए इजी हो जाएगा। जो बच्चे कर सकते हैं स्ट्रेट बॉडी वो सीधा करें, कोशिश वही करें सीधे की। और नहीं हो रहा है तो बिगिनिंग में आप घुटने पर बैठ के और इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आती है स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज मीन बॉडी शेपिंग एक्सरसाइज। जिम्नास्टिक के अंदर आप देखा होगा कि बॉडी का शेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि शेप है तभी आपकी सुंदरता आएगी, जब जो हम एक एस्थेटिक एस्पेक्ट बोलते हैं वो उसी से आता है। और एस्थेटिक एस्पेक्ट जब भी आता है कि आपकी बॉडी कितनी सीधी है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट हैं, पर जितने कम जॉइंट होंगे उतने बॉडी की सुंदरता बढ़ती है। आपने देखा होगा जो बिल्कुल सीधे बॉडी से एक्सरसाइज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो पाइप से होती है उसकी कम होती है, और जो टक होता है उसकी उससे कम होती है। यदि वो डबल में जाता है तो वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर भी यदि हम टक और स्ट्रेट में यही अंतर है कि क्योंकि सीधी बॉडी करना मुश्किल होती है और वो सुंदर भी लगती है। तो जितने बॉडी के अंदर कम सेगमेंट होंगे, कम से कम जोड़ होंगे, उतनी बॉडी सुंदर बनेगी। इसलिए बॉडी शेप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें कई एक्सरसाइज है। इसमें होल्डिंग टाइम आएगा, जो पोजीशन होगी उसको आपको 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी कमांड होगा उतनी देर आपको रोकना है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बोलते हैं हम अवेयरनेस, अपनी बॉडी की जानकारी रखना। आप बिना देखे आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाथ सीधे हैं, आपकी टांग सीधी है, देखना नहीं है, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। तो हम 3-4 चीज इसमें सीख रहे हैं। एक्सरसाइज की सुंदरता, बॉडी का शेप हो रहा है, बॉडी की जो पोजीशन मालूम पड़ रही है कि आपकी बॉडी कितनी किस जगह पर किस एंगल पे है, सीधी है कि नहीं। तो ये 3-4 चीज इसमें सीखते हैं, पर इसमें आपको एक्सरसाइज को होल्ड करना पड़ेगा। ये तो कोई एक्सरसाइज है, इसमें जस्ट स्टैंडिंग ऑन द टो, रेजिंग हील विद आर्म अप, यू हैव टू होल्ड द स्टिक इन द हैंड सो यू कैन स्ट्रेच, जस्ट स्ट्रेच अपवर्ड। ऐसा लगना चाहिए कि आप हाई बार पे लटके हुए हैं। ये हमारा लेट के हैंड स्टैंड है। देखो इसमें फीलिंग करना है, आप फीलिंग करना है कि आप हैंड स्टैंड कर रहे हैं, ऊपर हाथ को खींचना है, नीचे टांग को खींचना है। एब्डोमेन और बैक का एक कॉम्बिनेशन है, ना ज्यादा खींचना है ना कम। तो बिल्कुल आपका सीधा बॉडी रहेगा और हेड पोजीशन हमारी नॉर्मल रहेगी। यदि हेड उठाएंगे तो देखना आपके कमर के अंदर आर्च होगा या हुक बनेगा। तो ये एक हमारा हैंडस्टैंड सीखने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और ये करेंगे तो आपको जब हैंडस्टैंड करेंगे तो आपको स्ट्रेच हैंडस्टैंड होगा। इसके बाद आ गया हमारे सपोर्ट पोजीशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन जिम्नास्टिक्स में होती है सपोर्ट। चाहे बीम हो, चाहे एक्रोबेटिक्स हो, चाहे एरोबिक्स हो, चाहे लड़कियों का जिम्नास्टिक लड़कों का हो, ये पोजीशन उसमें आती है। और ये जो सपोर्ट पोजीशन जिसको आ गई तो उसको कई एक्सरसाइज आराम से हो जाती है। और इसमें देखो तीनों पोजीशन बहुत अच्छी है, साइडवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें शोल्डर बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए और वेट आपके शोल्डर पे आना चाहिए, हेड नॉर्मल। वन लेग बैलेंस, दोनों बैलेंस अच्छे हैं देखो। और नीचे खास तौर पे यदि आप ध्यान देंगे
के नीचे जो टांग है सपोर्ट, जो लेग लगा है, वो थोड़ा उसके पंजे बाहर की तरफ होंगे तो अच्छा बैलेंस होगा। इसमें जो देखा है ना, यदि अंदर की तरफ होंगे तो आपका बैलेंस कम होगा, बाहर की तरफ जाए, पंजा बाहर की तरफ जाना चाहिए, जो नीचे जमीन पर है। ऊपर की पोजीशन अच्छी है और इसको होल्ड करना है और यहाँ पे फील करना है अवेयरनेस कि मेरे पंजे खींचे हैं, मेरी टांग बिना देखे महसूस करना चाहिए, जो जिम्नास्टिक में जरूरी है। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, देखो कितना बढ़िया इसने रोका है बच्चे ने, और इससे करने से आप देखेंगे कि यदि ये अच्छा है तो आप स्टेबल जो एल होल्ड करेंगे वो हवा में, वो करने में आपको मदद मिलेगी। ये एल सपोर्ट पोजीशन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, आजकल तो 8-9 साल के बच्चे वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छा करते हैं एल पोजीशन। तो यदि जो नहीं कर पा रहे हैं वो निराश ना हो, कोई बात नहीं होता, पहले पैर नहीं उठेंगे, 1-2 दिन उठेंगे, 4 दिन उठेंगे, 5 दिन उठेंगे, दूसरे तीसरे सप्ताह आप देखेंगे आपके टांग उठने लगेंगे और आप उसको होल्ड भी कर पाएंगे। तो ये एल सपोर्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी डिसिप्लिन में काम आएगी आपको, एरोबिक्स में, एक्रोबेटिक्स में और आर्टिस्ट में तो आती रहती है। और इसके बाद आ गया हमारा स्ट्रेडल होल्ड। देखो कितना बढ़िया बैलेंस के हाथ के ऊपर है, और इसमें हम महसूस करना है, बॉडी की पोजीशन महसूस करना है, लेग सीधे हैं कि नहीं, देखना नहीं, बिना देखे। तो पूरा वेट इसके शोल्डर पे होगा। स्ट्रेडल होल्ड टाइम से होल्ड करेंगे। इसके बाद वी होल्ड, तो ये सब पोजीशन जो बता रहा हूँ मैं, एल पोजीशन, वी होल्ड और सीधा बॉडी, ये हमारे साथ जिम्नास्टिक के फंडामेंटल मूवमेंट है, ये हमें हर जगह काम आएंगे, किसी भी रिदमिक हो, एरोबिक्स हो, ट्रैम्पोलिन, सब तो ये बॉडी पोजीशन काम होगी। यदि फ्लोर पे आपकी बॉडी पोजीशन अच्छी है तो आप आपके एक्सरसाइज जो स्किल करेंगे उसमें भी आपकी बॉडी पोजीशन अच्छी रहेगी। हाँ, इसको हमने होल्ड करना है। ये टक पोजीशन, टक में देखो घुटने भी मुड़े हैं, बॉडी भी मुड़ी है, ये टक इसको बोलते हैं। यदि बॉडी खुली है तो उसको हम टक नहीं बोलेंगे। तो ये पोजीशन अच्छी है तो आपकी बॉडी पोजीशन अच्छी होगी, आपकी एक्सरसाइज की स्किल की पोजीशन अच्छी होगी, आपको मार्क ज्यादा मिलेंगे। तो इसको आप होल्ड करके रोकें, महसूस करें कि व्हाट इज टक, तो ये आपको सब कुछ हेल्प करेगी। इसके बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, तो जिम्नास्टिक का जो एंड पार्ट होता है ना, कोई भी एपरेटस को, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में, एक्रोबेटिक्स में, ट्रैम्पोलिन में, जहाँ लैंडिंग आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और हमें इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि सिंपल जंप और लैंड किया है, इसका यदि डायनेमिक देखना चाहेंगे तो यूट्यूब को क्लिक करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। यह हमारा लाइव जो आज चलेगा उसमें देखना। इसमें हमने एक नीचे से हाथ को स्विंग करते हुए ऊपर जाना है, हाथों का स्विंग लेना जरूरी, हवा स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे ही हम जमीन पे टच होते हैं, अभी ऊपर हाथों का कोई एक्शन नहीं है, सबसे पहले हमारे टो टच होंगे, टो टच होते ही आपको पीछे हील टच करना है, इसके बाद आपको नी मोड़ना है, नीज को मोड़ना है, और इसके बाद आपको हाथ लाना है शोल्डर से नीचे लाके और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, और इस पोजीशन में जाने के बाद आपको होल्ड करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंप करने का एंड आप नीचे आके होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 देन फिर स्ट्रेच करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जिम्नास्टिक्स में लैंडिंग, जिसका लैंडिंग अच्छा है थोड़ा टांग खोल सकते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, और जब ऊपर खड़े होंगे तो खड़े होते होते इसकी हील को मिला लो तो आपके टांग जुड़ जाएंगे। अपने शोल्डर विड्थ से कम टांग खोलेंगे, इसकी कोई पेनल्टी भी नहीं है, कोई मार्क भी नहीं कटेंगे, बैलेंस अच्छा होगा। जब ऊपर जाएंगे तो आप उसकी हील को मिला लें तो आपका अच्छा लैंडिंग की प्रैक्टिस होगी। ये हमारी सब स्टैटिक और डायनामिक एक्सरसाइज होगी, और लास्ट में हमारे वार्म डाउन एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होगी है और रिकवरी भी आपकी होगी शवासन से। पर एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, पिछली स्लाइड में जा रहा हूँ, ये जो हमारा लैंडिंग प्रिपरेशन की जो एक्सरसाइज होगी, इसके बाद हम आपको थोड़ी देर बिठाएंगे और आपको इस जगह आपकी हार्ट बीट लेना है 10 सेकंड में। ये नोट करें पेरेंट्स, जिम्नास्ट भी, जब आपका ये लैंडिंग होगा इसके बाद आपको आपकी हार्ट बीट लेना है, और ये डेफिनेटली ज़्यादा होगी। यदि पहले आपकी 72 थी तो अब ये आएगी आपकी 100-110 आना चाहिए। आई इससे मालूम पड़ेगा आपने एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम जाते हैं रिकवरी एक्सरसाइजेज। ये बिल्कुल कामली करना है, आराम से करना है और उसको रोकना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप स्प्लिट सीटिंग है, जनरली हम करते हैं। इसमें भी देखो आप जो स्प्लिट है आगे पीछे टांग वाली, जो मेरे ऊपर के लेफ्ट राइट पिक्चर है, इसमें पीछे टांग के बारे में आपको पिक्चर बनाना है कि मेरी टांग सीधी है कि नहीं, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, तभी ये पॉसिबल है। और यदि आपका हिप जॉइंट अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, तो ये एक्सरसाइज करना बड़ा आसान है। इसी प्रकार से नीचे स्ट्रेटल सीटिंग करें, बहुत अच्छा किया है इसने। और देखो इसका पंजे भी पीछे हैं, बॉडी भी सीधा है, और ये एक्सरसाइज करेंगे
तो आपकी जो एग्जीक्यूशन के मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जैसे मैडम दीपा ने बताया कि देखो एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिम्नास्टिक्स में। तो इस प्रकार से हम ये स्प्लिट सिटिंग होगी, इससे आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज है, ये हमारी ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। देखो आगे लकड़ी पकड़ के आगे झुकना है और पूरा छाती पेट सहित आपको नीचे लगाना है। यहाँ पे फील करना है आपके कि घुटने सीधे हैं, तो स्ट्रेच है कि नहीं, आपको फील करना है। तो इसको रोकना है तो आपकी ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये फॉरवर्ड बेंडिंग लॉन्ग सिटिंग पोजीशन इसको बोलते हैं। इसको पूरा स्ट्रेच करके इसको रोकना है। ब्रिज पोजीशन, देखो ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे यहाँ। तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज। हमको लगता है जरूर ट्रंक है, पर ये एक्सरसाइज हो रही है हमारी शोल्डर की। इसमें हमारे शोल्डर है ना फ्लैक्स हो रहे हैं। ये जो हाथ है बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, तब हाथों पे वेट आएगा और टांगे सीधी। और हाथ की पोजीशन देखो इसने अंदर रखा है, ज्यादा सेफ्टी रहेगी यदि अंदर रखेंगे तो ये ब्रिज इस प्रकार से होना चाहिए। और शोल्डर्स में स्ट्रेच होना जरूरी। देखो शोल्डर में एंगल नहीं होना चाहिए, हेड नॉर्मल। ये हमारा है शोल्डर स्ट्रेचिंग और बैकवर्ड। ये शोल्डर के लिए ये एक्सटेंशन हो रहा है हमारा शोल्डर का। तो जितने बढ़िया आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होंगे तो उतना ही आपकी एक्सरसाइजेस अच्छी होंगी, अच्छा स्विंग होगा, अच्छा पुश होगा आपका। और ये नीलिंग बोलते हैं, नी पे बैठ के आपको आगे जाना है। तो इन एक्सरसाइज से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है और आपका रिलैक्सेशन भी हो रहा है। आप यू आर काम डाउन भी हो रहे हैं, वार्म डाउन भी हो रहे हैं। और लास्ट में हमने किया है दैट इज शवासना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आसन करने से आप लेट जाएं, आंख बंद करें, गर्दन को एक साइड रखें, लेफ्ट या राइट, बिल्कुल लटका दें इसको। हाथ की जो हथेलियां जो ऊपर की तरफ हो उसको हम नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन पॉइंट से हथेलियां ऊपर हो, पैर बिल्कुल थोड़े से खुले और पंजे भी नीचे गिरे हो तो बहुत बढ़िया साइड में। और आंखों को बंद करना है और लंबी लंबी सांस लेना है और खुद अंदर सोचना है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। ये सबसे बढ़िया शवासन होता है। यदि आप 2-3 मिनट रखेंगे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी। ये लास्ट में हमारी स्लाइड है, दिस इज एक्नॉलेजमेंट। तो आई एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारे प्रेसिडेंट जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस बच्चों का, ग्रासरूट लेवल बच्चों का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन। मेरा स्पेशल थैंक्स भी सभी कमेटी मेंबर्स, माय कोलीग्स, एक्सपर्ट्स, coaches all over India, parents for providing their valuable suggestion and input in the completion of the grassroots level athlete. इन सभी का मेरा बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि इन्होंने इस शॉर्ट टाइम में, केवल हमने 10 दिन में 20-22 तारीख के बाद हमने तैयारी की है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, सभी के लिए मुश्किल है। पर जिस प्रकार से भी हमें इन कोचेस साहबान ने उनके सजेशन मांगे, हमने सभी कोचेस से पूछा कि कैसा होना चाहिए और उनके सजेशन के बेसिस पे और हमारे एक्सपर्ट्स के कमिटेड सपोर्ट, हमारे एक्सपर्ट ने जब भी हम बुलाते हैं 10 बजे सब आए और उन्होंने हमें मदद की, तो हम इस छोटे समय में ये प्रोग्राम बना सकें। और लास्ट में मैं और बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये 1 महीने का बना है और इस महीने में हम पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, इसके अंदर एक्सरसाइजेज हमारी बिल्कुल सेम रहेगी पर उसके होल्डिंग टाइम, उसके रिपीटिशन टाइम ये हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से आपके बॉडी के ऊपर लोड पड़ता जाएगा। और सबसे फिर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, यदि कोविड-19 से यदि बचाव करना है सबका, अपने अपने घर वालों का, पड़ोसियों का, तो अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थैंक्स एवरीवन who join us today, who help us to make the program, this PPT successful. So now I hand over class to Mr. Rohit Jaiswal. He will give you the practical demonstration. Rohit Jaiswal. Thank you, sir. सबसे पहले good morning to all the senior coaches and our experts. अब हम लाइव डेमो करेंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस सर ने बताई है तो हम उसको लाइव दिखाएंगे कैसे करना है आपको। तो हमारे साथ हमारे जिम्नास्ट है जो हमें डेमो करके दिखाएंगे, मिस्टर वासु दानी फ्रॉम खेलो इंडिया एकेडमी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली।
सर स्टार्ट कर सर. Rohit, sorry, I forgot to name the Lakhan Sharma. He is also one of our member. He'll be adjusting our music. I'm sorry, I forget his name. Lakhan Sharma is also our committee member. He is helping in all respect, making slides and the music, etc. So once again, I think. Rohit, please start the class. ओके, थैंक यू सर. तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था, हम जो रनिंग या कुछ एक्सरसाइज शुरू करते हैं उससे पहले हम अपने सारे जॉइंट्स को मोबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं और वार्म अप करते हैं. तो सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिस्ट एंड एंकल रोटेशन है. तो रिस्ट और एंकल रोटेशन में क्या करते हैं, पैर को थोड़ा सा दूर खड़े ओपन करते हैं और रिस्ट और एंकल को घुमाना है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 4 टाइम्स. आपको जैसे डेमोन्स्ट्रेटर दिखा रहे हैं इस तरीके से 1 2 3 4. अब लेग्स और आर्म्स चेंज करेंगे, अदर लेग्स 1 2 3 4. ये आपके 4 बार होगा. इस तरह के 2 बार करने हैं आपको. 1 2 3 4. साइड चेंज 1 2 3 4. नेक्स्ट एक्सरसाइज है जैसे सर ने बताया था, नेक को लेफ्ट एंड राइट साइड घुमाना है, जिसको कहते हैं नेक रोटेशन भी कहते हैं. नेक रोटेशन लेफ्ट साइड से 4 टाइम्स करना है और राइट साइड से 4 टाइम करना है. इसके लिए आपको पैर को थोड़ा डिस्टेंस बनाना है और हाथ को अपने कमर के ऊपर रखना है. स्टार्ट लेफ्ट साइड से 1 2 3 4. साइड चेंज अदर साइड 1 2 3 4. ये एक सेट हो गया. इस तरह के 2 सेट करने हैं. साइड चेंज 1 2 3 4. साइड चेंज 1 2 3 4 एंड एक्सरसाइज चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर रोटेशन. इसमें क्या करना है, पैरों को थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे. इसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि एल्बो फिंगर्स सब टाइट रहेगा पर आर्म्स रिलैक्स रहेगा. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे और पीछे से आगे. 1 2 3 4. अपोजिट साइड 1 2 3 4. फॉरवर्ड फॉरवर्ड 1 फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड. चेंज बैकवर्ड बैक 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 चेंज. अब हमें क्या करना है, ट्रंक रोटेशन करना है. ट्रंक रोटेशन लेफ्ट साइड से 4 टाइम्स और राइट साइड से 4 टाइम. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. स्टार्ट 1. इसमें भी ध्यान रखने वाली चीजें क्या है हमें कि पैर में थोड़ा, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा और हाथ कमर के ऊपर रहेगा. पूरा गोल गोल घुमाना है. साइड चेंज 1 2 3 4. अदर साइड. ये एक सेट हो गया. 1 2 3 4. साइड चेंज 1 2 3 4. एक्सरसाइज चेंज. हिप जॉइंट रोटेशन विथ लेफ्ट एंड राइट लेग. इसमें भी हाथ कमर के ऊपर रहेगा, पैर में थोड़ा डिस्टेंस. एंड स्टार्ट राइट लेग से. स्टार्ट 1. राइट लेग को उठाना है और पूरा गोल घुमा के अदर साइड रखना है. 3 4. लेग्स चेंज 1. इसमें क्या किया हमने, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं. 2 3 4. अब एक्सरसाइज चेंज करेंगे, बाहर से हमें अंदर आना है. 1 2 3. इन सभी एक्सरसाइज में आपको देखना है कि हमारी बॉडी का पोजीशन स्ट्रेट रहेगा और इसमें भी देखिए टोज खींच के हमें करना है. हमें टोज और इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है ताकि हम आगे के लिए प्रिपेयर हो सकें. एक्सरसाइज चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज नीज बेंडिंग. थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस. स्टार्ट 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप. ये 4 टाइम्स करने थे. ये भी स्ट्रेच हो गए. अब हमारे क्या जॉइंट्स, हमारे मोबिलिटी स्ट्रेच हो गए हैं. अब हमें दूसरे सेक्शन पे आना है, कार्डियोवास्कुलर सेक्शन पे, जिसमें हमारी जॉगिंग्स ये सब चीजें हैं. तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी, जिस सर ने बताया था आपको, जॉगिंग. अब हम इस लॉकडाउन में कहीं बाहर जा नहीं सकते जॉगिंग करने के लिए, तो हमें जॉगिंग ऑन द स्पॉट करना है. जॉगिंग ऑन द स्पॉट. स्टार्ट 1 2 3. ये 10 सेकेंड सारे करने हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10. एक्सरसाइज चेंज. हाई नीज ऑन योर स्पॉट.
घुटने को कमर तक आना है और टोज हर बार जब घुटना ऊपर आएगा टोज खींचना है आर्म स्विंग के साथ। वेरी गुड। एक्सरसाइज चेंज, रनिंग विथ हील्स किक बैक, एड़ी को पीछे हिप्स पे मारना है और पंजे खींचे रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज चेंज। नाउ सीजर्स, स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 4 सेक्शन की एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हमारा 15 मिनट्स का ब्रेक होगा। आज हम आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे ताकि आप एक्सरसाइज हमें कैसे करना है वो हम सीख जाएं। आज सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है इन सब चीजों का। इसके बाद 15 सेकंड्स का ब्रेक होगा और ये चारों एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करनी है। फिर हमारा उसके बाद जब हम रिपीट कर लेंगे इस चारों एक्सरसाइज, उसके बाद 45 सेकंड्स का ब्रेक होगा। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है जंपिंग जैक्स। आर्म्स हमारा शोल्डर लेवल तक जाएगा और जंपिंग जैक्स करना है। स्टार्ट जंपिंग जैक्स। फिंगर्स आर्म्स टाइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज चेंज। स्ट्रेच बॉडी जंप्स, आर्म्स अपवर्ड। इसमें ध्यान देने की क्या चीज है, हाथ कान के साथ हमेशा मिले रहेंगे। हिप्स टाइट, चेस्ट इन, नीज टाइट। 5, 6, 7, 8, नीज टाइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे सर ने बताया था आपको बॉडी ट्विस्टिंग। बॉडी ट्विस्टिंग में क्या करना है, जंप के साथ आपके कमर को लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करना है। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज चेंज। स्क्वाट सिट एंड स्ट्रेच बॉडी जंप। नीचे बैठना है पूरा और जंप करना है। पूरी बॉडी ऊपर एयर में स्ट्रेच होगी, घुटने पंजे खींचेंगे और फिर वापस इसी पोजीशन पे आना है। स्टार्ट। 1, अप, 2, अप। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है क्या, हर बार जंप पे बॉडी पूरी स्ट्रेच होगी, हाथ कान के पास आएंगे और नीचे पंजे और घुटने खींचे रहेंगे। एक्सरसाइज चेंज। अब इसमें क्या होगा, ये जैसे हमने 4 ग्रुप की एक्सरसाइज की है, इसके बाद हमारा फिर 15 सेकंड्स का ब्रेक होगा। उसके बाद हम फिर ये चारों एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। उसके बाद हमारा 2 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बीच में हम क्या करना है, जब ब्रेक होगा तो अगर किसी बच्चे को पानी पीना है तो थोड़ा थोड़ा एक सिप पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो ये सेगमेंट हमारा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में हमें क्या करना है, जैसे आपको नेबर सर ने बताया था कि सभी बच्चों को एक स्टिक लेके आनी है। तो स्टिक के साथ क्या करना है, स्टिक उठा लीजिए। स्टिक को अपने शोल्डर के एंगल के हिसाब से पकड़ना, थोड़ा सा दूर पकड़िए और आपके शोल्डर लेवल के हिसाब से, और हील्स रेजिंग करना है साइडवेज। इसमें क्या ध्यान देना है, हिप्स टाइट, हाथ कान के साथ मिले रहेंगे और हील्स रेजिंग करना है। 1, अप, नीज टाइट, 2, अप, 3, 4, 5। इसमें ध्यान सबसे ज्यादा चेस्ट कीप करके, हिप्स टाइट, नीज टाइट, पूरा हाथ कान के साथ लगे रहेंगे। एक्सरसाइज चेंज। दूसरी एक्सरसाइज इसमें स्क्वाट सिट वुडन स्टिक ऑन ओवरहेड। इसको भी स्टिक के साथ करना है, हाथ कान के साथ ऊपर रहेंगे और स्क्वाट पोजीशन में बैठना है। और ध्यान देना कि हमारा बैक पूरा प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा। स्टार्ट। डाउन, अप, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। वेरी नाइस। थोड़ा सा और हल्का सा पैर खोल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, बस। डाउन, बैक स्ट्रेट। वेरी गुड। पोजीशन पे ध्यान देना है। ये जो एक्सरसाइज सारे एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की है वो हमें एज अ जिम्नास्ट की बॉडी प्रिपरेशन के लिए है। एक्सरसाइज चेंज। स्टिक रख दीजिए अपनी जगह पे। लंजेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें क्या करना है, पैर को थोड़ा सा खोलना है, हाथ कमर के ऊपर, लेग को आगे किक मारना है टोस खींच के, और आगे बैठना है और फिर उठना है। लंजेस। स्टार्ट। 5 टाइम्स। 1, अप, 2, अप, chin straight and back straight. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up. Exercise change.
साइड सिटिंग लेफ्ट एंड राइट साइड, इसमें क्या ध्यान देना है, पैर को खोलना है, पैर को थोड़ा और खोलिए, थोड़ा अपने शोल्डर लेवल से ज्यादा खोलना है, इसमें हाथ सामने की तरफ, इसमें क्या ध्यान देना है, बैक स्ट्रेट, चिन अप, जैसे जिम्नास्टिक होता है ना, बैक स्ट्रेट चिन अप, हाथ सामने की तरफ, फिंगर्स हाथ की क्लोज रहेंगी। रेडी, लेफ्ट साइड डाउन, अप, 1 2 3 4, toes tight, 5 6 7 8 9 and 10। एक्सरसाइज चेंज। इसके बाद फिर हम अपनी स्टिक उठा लेंगे, हमें करना है ट्रंक बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। वुडन स्टिक को पकड़ना है, हाथ ऊपर कान के साथ रहेंगे और पैर थोड़ा खोल लेंगे और आगे झुकना है 90 डिग्री में और फिर पीछे झुकना है। स्टार्ट, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अप बैक बैक बैक, अप, ये हो गया 2, डाउन अप बैक अप, 5 अप 6 अप। हाथ हमेशा कान के साथ लग रहेंगे, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। अप डाउन अप डाउन अप। एक्सरसाइज चेंज। अब इसी वुडन स्टिक के साथ हमने अभी जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया था, अब इसी वुडन स्टिक के साथ हमें पैर को थोड़ा खोलना है, हाथ कान के साथ लगे रहेंगे और साइड बेंडिंग करना है। राइट साइड डाउन अप, लेफ्ट साइड डाउन अप, 2 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, 7 हाथ कान के साथ अप, 8 अप, 9 अप, 10 अप। वेरी गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है 1 लेग। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है वो है जैक नाइफ। अपनी जगह पे सीधा लेट जाइए। जब मैं कहूंगा आपको जैक नाइफ पोजीशन तो आपको स्ट्रेट एकदम लेट जाना है। इसमें क्या ध्यान देना है, नीज टोज टाइट, पंजे मिले हुए, हाथ कान के साथ एकदम लगे रहेंगे हमेशा। जब मैं कहूंगा जैक नाइफ पोजीशन तो ऐसे लेट जाएंगे। मैं कहूंगा स्टार्ट तो स्टार्ट जैक नाइफ। 1 2 3 4 5 6 7, नीज टाइट 10 एंड रिलैक्स। इसके बाद जो अगली हमारी एक्सरसाइज है वो है बनाना रॉकिंग ऑल साइड। इसमें क्या करना है, बॉडी को बनाना शेप में करना है, यानी डिस्क पोजीशन में करना है और रॉकिंग करना है 10 टाइम्स ईच साइड। स्टार्ट, 1 2 3। इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है, चेस्ट पूरा इन रहेगा। ये जो ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम है वो बच्चों को अभी से हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडी शेप, उनके बॉडी अलाइनमेंट, उनके पंजे घुटने खींचने की हम प्रिपरेशन कर सके आगे के लिए। साइड चेंज, एक स्ट्रेट लाइन में करना ये, अब साइडवेज, घुटने पंजे टाइट। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6। एक लाइन पे बॉडी स्ट्रेट, एक लाइन पे हाथ कान के साथ। एक्सरसाइज चेंज, अब बैकवर्ड फेस इनसाइड, घुटने पंजे टाइट, हाथ कान के साथ लगे रहेंगे। सभी बच्चों को इसमें ध्यान देना है। रॉकिंग स्टार्ट, 1 नीज टाइट, नीज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज दूसरी आ जाएगी जिसको कहते हैं फ्लटर स्किट, अप एंड डाउन, ओपन एंड क्लोज, ईच 6 टाइम्स। बनाना पोजीशन, बॉडी से अप एंड स्टार्ट। इसमें भी ध्यान देना है, नीज और टोज पूरे प्रॉपर टाइट रहेंगे और बॉडी हाथ कान के पीछे वासो। चेंज, ओपन एंड क्लोज 6 टाइम, 3 4 5 6। बैक साइड। अब इसी एक्सरसाइज को पीछे लेट के करना है हमें। 1 2 3 4 5, ओपन एंड क्लोज, नीज टाइट, टोज टाइट, हाथ कान के साथ लगे रहेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर टचेस, राइट हाथ से लेफ्ट शोल्डर टच करना है, लेफ्ट से शोल्डर राइट को टच करना है, डिप्स पोजीशन पे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। इस एक्सरसाइज को करते हुए बॉडी पोजीशन पे स्ट्रेट एकदम होनी चाहिए, ना बॉडी कमर से डाउन होगी ना कुछ होगी, एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे रखना। एक्सरसाइज चेंज। अगली एक्सरसाइज हमारी डिप्स विद स्ट्रेट बॉडी। देखिए सभी बच्चे डिप्स करते हैं, इसमें हमें आप देखिए जो आगे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उनकी बॉडी का पोजीशन, नीज टाइट, पूरी बॉडी नीचे जाएगी और पूरी बॉडी को ऊपर आना है। 1 अप 2 3 4 5 एंड एक्सरसाइज चेंज। इसके बाद हमारा डायनेमिक एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है और जो नेक्स्ट इसके बाद हमें ब्रेक मिलेगा। फिर उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है वो आती है स्टैटिक एक्सरसाइज बॉडी शेपिंग। तो हमारी उसमें पहली एक्सरसाइज है स्टैंड ऑन टोज विथ वुडन स्टिक। एक बार वुडन स्टिक फिर आप ले लीजिए, ठीक है। वुडन स्टिक पकड़ना है और अपने टोज पे खड़े होना है। इसमें भी ध्यान देना है हाथ कान के साथ, हिप्स टाइट, चेस्ट इन, हाथ कान के साथ अप ऑन योर टोज। और इसमें 10 काउंट करना है। हाथ थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं कान के, हाँ गुड बॉय। ये भी देखिए सब आपकी बॉडी अलाइनमेंट की एक्सरसाइजेज है। रिलैक्स। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो बैक लाइन पोजीशन पे, जैसे हम हैंडस्टैंड करते हैं उसी तरीके से हमें जमीन पे लेट के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या चीज है, हमारा जो चेस्ट है पूरा गोल रहेगा, हिप्स टाइट रहेगी और हाथ एकदम टाइट रहेंगे, शोल्डर जमीन के साथ, और थोड़ा सा हाथ को देखना है। स्टार्ट, शोल्डर और नीचे, 1 2 3। इस तरीके से हमें फुल बॉडी, नीज, हिप्स सब टाइट रखना है। ये 10 सेकंड करने के बाद हमें पलट के लेटना है और वो भी 10 सेकंड करना है। अदर साइड, चेस्ट कीप, चेस्ट इन, हाथ को थोड़ा देखिए, फुल बॉडी टाइट, चेस्ट इन और हाथ नीचे। इसी तरह घुटने, पंजे, फुल बॉडी टाइट रहेगी 10 सेकंड तक। इसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज आती है हमारी है सपोर्ट पोजीशन होल्ड ऑल साइड। एक्सरसाइज चेंज, सपोर्ट पोजीशन, इसमें बॉडी पूरी स्ट्रेट रहेगी और होल्ड करना है। हेड डाउन लिटिल, हेड डाउन, 1। ये जो चारों साइड इसको होल्ड करना है 10 सेकंड। अदर साइड, हाथ थाइस के ऊपर, बॉडी एक सीधी लाइन में, घुटने पंजे टाइट। ये दूसरी साइड हो गई। अदर साइड, ये साइड थर्ड हो गई। इसमें चेस्ट को गोल करना है, हिप्स टाइट, नीज टाइट। साइड चेंज। ये सभी साइड जो हम करेंगे 10 सेकंड होल्ड करना है यहाँ पे। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी चेंज होती है। अब हम करेंगे 1 लेग बैलेंस। अपनी जगह पे खड़े होकर हम 1 लेग बैलेंस करेंगे। उसके बाद 1 लेग बैलेंस स्टार्ट। इसमें हाथ साइड में रहेंगे, वाई पोजीशन पे, थोड़ा सामने देखेंगे और इस बैलेंस को यहाँ पे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। एक्सरसाइज चेंज। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम टोज और नीज टाइट करने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी वो हैबिट में आए। तो अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, एल पोजीशन में बैठ जाएंगे और घुटने पंजे टाइट करके बैठना है सिर्फ 10 सेकंड तक। बैक स्ट्रेट, नीज टाइट, टोज टाइट, थाइस की पूरी मसल्स टाइट, और इतना टाइट करना है कि आपकी घुटने के नीचे से हील्स ऊपर उठ जानी चाहिए। वासु आप पीछे हो जाइए। इसमें एडी और पंजे मिले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे एल होल्ड। तो अपनी पोजीशन पे एल होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। एल होल्ड पोजीशन, अप, 1 2। इसमें ध्यान देने की क्या चीज है, कोशिश करना आपके हिप्स एकदम आगे की तरफ रहे और चिन अप, डाउन। अगली एक्सरसाइज जो है इसमें आती है स्टैटिक में, वो है स्ट्रेडल होल्ड पोजीशन। These are all very basic and important holding exercise जो हमारे जिम्नास्टिक्स में, फिजिकल प्रिपरेशन में काम आती है। पैर को थोड़ा खोलना है और हाथों पे एकदम स्ट्रेडल करके होल्ड करना है। कोशिश करना है कि आपका जो पैर हो एल्बो लेवल के ऊपर हो,
रेडी, अप, 1 2 3 4 5 एंड डाउन। 5 सेकंड तक इसको भी होल्ड करना है। अब हम करेंगे वी पोजीशन होल्ड। वी होल्ड नहीं करना है, वी की पोजीशन को हमें होल्ड करना है 5 सेकंड्स तक। रेडी, अप, हाथ पीछे, नीज टाइट, टोस टाइट, 4 5 एंड डाउन। तो ये हो गई हमारी वी पोजीशन होल्ड। दूसरा जिम्नास्टिक्स में इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है? टक पोजीशन होल्ड। टक को कैसे खींच के होल्ड करते हैं, अभी आप पिक्चर में देखा था। अब टक पोजीशन ये है, टक को खींचना है और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो टक को पकड़ना है और नीचे जो पंजे रहेंगे वो भी खींचना है। चाहे हम सिंगल सोल्टो करते हैं या स्ट्रेट बॉडी करते हैं फ्लोर पे या किसी भी इवेंट को डिस्माउंट करते हैं पैरेलल बार पे या हाई बार पे, तो टक एलिमेंट पे भी पंजे एकदम प्रॉपर खींचे होने चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सर ने जो बताया था जिम्नास्टिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो है हमारी लैंडिंग प्रिपरेशन। आजकल सबसे जरूरी चीज है लैंडिंग्स पे ध्यान देना। अगर हम हर एक इवेंट पे लैंडिंग्स पे ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारे जो डायरेक्शंस मेजर्स हैं वो बचा सकते हैं। तो अपनी जगह पे जंप करेंगे और लैंडिंग पोजीशन आके होल्ड करेंगे। रेडी, अप, यहाँ पे सामने जमीन को देखना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे वहां पे। अप, यहाँ पे आके होल्ड करेंगे, 1 2, अगेन जंप। तो इस तरीके से हमें 10 रेपिटेशन करने हैं। तो अब इसके बाद हमारा आता है जो सेक्शन आएगा, इसके बाद आपको नेबर सर बताएंगे कि अपना हार्ट रेट लेना है। तो अपनी पल्स काउंट करके सर को बताना होगा, सबको वो चैट बॉक्स में लिख देंगे जब हम शुरू करेंगे। आज तो डेमो है। उसके बाद हमारा आ जाता है वार्म डाउन एक्सरसाइजेज। तो वार्म डाउन एक्सरसाइजेज में क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है ऑल साइड, फॉरवर्ड स्प्लिट, साइड स्प्लिट, लेफ्ट एंड राइट साइड, और 10 सेकेंड होल्ड करना है। टोस टाइट, हाथ साइड में, होल्ड, इस तरह होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। साइड चेंज, पीछे वाला घुटना टाइट, आगे वाला टोस टाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रहा है, वार्म डाउन भी हो रहा है। पीछे घुटना टाइट, बॉडी एक लाइन पे करना है, 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, वुडन स्टिक दोबारा ले लेंगे अपनी, वुडन स्टिक ले लीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है स्ट्रेडल लेग में, हाथ ऊपर कान के साथ, एंड बैंड फॉरवर्ड। बैंड फॉरवर्ड, पूरा एकदम आगे रिलैक्स करके सो जाना, एकदम खींच के आगे। इसको भी 10 सेकंड तक काउंट करेंगे, 5 6 7। इसमें ध्यान क्या देना, हमारे घुटने और पंजे एकदम प्रॉपर खींचे रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे बैंड फॉरवर्ड, पैर मिला के बैठ जाएंगे। ये भी वुडन स्टिक साथ आगे खींच के एकदम बॉडी पूरा आगे एकदम बैंड करना है प्रॉपर, और आगे स्ट्रेच कीजिए, 1। इसको भी 10 सेकंड तक काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना वुडन स्टिक जो आप साइड में रख देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने डिजाइन की है वो ब्रिज होल्ड। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किया जाता है, जब मैं कहूंगा लेट जाएंगे, जब मैं कहूंगा ब्रिज पोजीशन तो अपने हाथों को कान के पास लाना है, घुटने बैंड करने हैं। तो ये होगी आपकी ब्रिज पोजीशन। मैं बोलूंगा अप तो अप, शोल्डर को एक लाइन पे, शोल्डर थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और नीज टाइट पूरा प्रॉपर। इसको 10 सेकंड तक काउंट करना है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सरसाइज चेंज। अब क्या करना है, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्या है, शोल्डर स्ट्रेचिंग की है। तो शोल्डर को पीछे लेके जाएंगे, हाथों को पीछे लेके जाइए, पूरा पीछे, बॉडी पूरी आगे स्ट्रेट रहेगी और एकदम रिलैक्स करके 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। रिलैक्स एकदम 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। घुटने पंजे टाइट, इसमें भी शोल्डर एकदम रिलैक्स। तो इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या है, कूल डाउन की, सिटिंग ऑन योर नीज। अपने घुटने पे बैठ जाएंगे,
घुटने पे बैठ जाइए, घुटने पे बैठना है और बॉडी पूरा आगे रिलैक्स करके लेट जाना है। लाई डाउन फॉरवर्ड, एकदम ढीला छोड़ दिए, एकदम ढीला, बॉडी फुल रिलैक्स। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, बॉडी पूरी की पूरी रिलैक्स रहेगी। इसको 30 सेकेंड्स तक यहाँ पे होल्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो लास्ट है कूल डाउन की, वो है सब आसन। अब सब आसन पोजीशन पे लेट जाइए। जब मैं बोलूंगा सब आसन पोजीशन में लेटना है तो आपको सीधा लेटना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस कमर से दूर, और जो पाम्स आपके रहेंगे वो ऊपर आसमान की तरफ रहेंगे, और जो नेक रहेगा लेफ्ट या राइट साइड टर्न करना है, और बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे। इसमें बॉडी फुल रिलैक्स। आपको फील होना चाहिए कि आपका पूरा बॉडी का वेट नीचे जमीन पे है, आप एकदम रिलैक्स कर रहे हैं और आईज क्लोज रहेगा। इसमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, आपकी ब्रीदिंग कैसे आ रही है। आप जब ब्रीद इन करते हैं तो स्टमक का कैसे ऊपर जाता है, या ब्रीद आउट करते हैं क्या होता है। एकदम बॉडी को फुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ देंगे, हाथों को, आईज क्लोज। तो इस तरीके से 5 मिनट हमें इसमें यहाँ पे लेटना होगा। तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइजेस खत्म होगी अब, और फिर हम क्या करेंगे, ये खत्म होने के बाद जब मैं कहूँगा अपनी जगह उठ के बैठ जाएंगे, तो धीरे से उठ के बैठना है आपको अपनी जगह पे। धीरे से उठ के बैठ जाइए, सिटिंग ऑन योर नीज, आईज खोल लीजिए। उसके बाद अपने घुटने पे आराम से बैठ जाना है। फिर जो हमारे क्या होंगे सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या करना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेवर सर से, प्लीज सर आप उसके आगे बताइए क्या करना है। आइए रोहित। हेलो रोहित। यस सर। आई एम ऑडिबल? यस सर। सर बोलिए प्लीज। Okay, well done. You have explained Yes, sir. everything, and I request all the parents and the participants, please note, this was demo today. ताकि आपकी कोई भी छोटी मोटी बातें हैं माइंड में ना पिक्चर हो, वो आपको क्लियर कर दी है पिक्चर के थ्रू और लाइव डेमो के थ्रू। ये हमारा डेमो था, और जब हमारी बुधवार को वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, उस टाइम में केवल हमारा प्रैक्टिकल होगा, उस टाइम पर हमारा डेमो नहीं होगा। और रोहित जैस और क्लास लेंगे और आपको ज्वाइन करना है। मैं देख रहा हूँ कि कई पेरेंट्स बड़े इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, कई बच्चे भी दे रहे हैं, पर इन एक्सरसाइज को आपको करना है उस दिन, तभी इसका फायदा है। यदि आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और फिर प्रोग्रेस नहीं नजर आएगी। तो आज ये वासु ने बहुत अच्छा किया, देखो इसको, मेरे को तो टीवी पे इसका पसीना नजर आ रहा है, तो क्योंकि बड़ा सीरियसली इसने किया। तो जितना आप सीरियसली करेंगे उतना ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा। और रोहित ने भी बहुत अच्छी क्लास ली आज, और हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ हैं, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो पर्दे के पीछे है, इसकी हमने पूरी प्रेपरेशन की। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल दी पार्टिसिपेंट, ऑल दी पेरेंट्स स्पेशली, प्लीज मेंटेन डायरी ऑफ योर जिम्नास्ट, योर वार्ड। उनकी हार्ट रेट को प्रैक्टिस करा लो, खुद भी ले ले तो बहुत बढ़िया है। और इसके बाद उसका प्रोग्रेस नोट करते जाएं। और देखो जो ये जिम्नास्ट एक्सरसाइज करेगा, जो दी है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसको कम से कम जिम्नास्टिक्स में उसको चोट नहीं लगेगी। उसके जो रिस्ट है या एल्बो है या नी में चोट नहीं, क्योंकि हमने इन जॉइंटों को कर दिया है, इससे चोट नहीं लगती। इसमें जब हमारी बॉडी के अंदर या तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है या उस बॉडी पार्ट में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तभी हमें चोट लगती है। तो ये सब के लिए फायदेमंद है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो बहुत बढ़िया रहा है। मैं श्री मंगला सर से बोलूंगा, कुछ यदि बोलना चाहे तो 2 मिनट में समाप्त करें, 2 मिनट केवल समाप्त करना है, और इसके बाद हमारा क्लास खत्म होगा। पेरेंट्स यहीं रहे अभी, मंगला सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स। ओके सर। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें लॉगिन अपने नाम से करें, क्योंकि कोई आईफोन का कर रहा है, कोई किसी चीज का कर रहा है, उससे हमको बच्चों के नाम नहीं पता लगते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम से ही लॉगिन करें और उसके साथ अपने शहर का नाम भी लिखें तो और भी अच्छा होगा। आज ये खाली डेमो था, तो बच्चों के बारे में तो हमको पता नहीं कुछ भी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने ये अच्छी तरह से सुना है
तो उनको ये चीजें, ये बातें उनको फायदा करेंगी। और आगे बुधवार को ये सेशन होगा और अगला सेशन शुक्रवार को होगा। ये हफ्ते में 3 दिन है, तो इसमें ये सब तरह की बातें ध्यान में रख के आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और एक रिक्वेस्ट सभी बच्चों से है कि दे शुड नॉट टेक वेरी सीरियसली, इसको एंजॉय भी करें, एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करें भी और एंजॉय भी करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर निर्मय सिंह एंड अदर्स। थैंक यू मोगला साहब। मैडम संध्या, कुछ आप बोलना चाहे ब्रीफ में? 2 मिनट्स ओनली। मैडम संध्या। यस सर। ब्रीफ में। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हेलो। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर। हाँ सर, आज मैंने ये जो प्रोग्राम देखा है, जो जैसा हमने सोचा था, ये उससे भी बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। और रोहित ने जो डेमो दिया है, इट वाज एक्सेलेंट। और बच्चों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती जाती हैं, ट्राई टू फॉलो देम। और जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो आने वाले टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। डॉक्टर पी रविंदर, एनी कमेंट्स इन ब्रीफ? डॉक्टर पी रविंदर। डॉक्टर पी रविंदर, हेलो हेलो। ओके, पेरेंट्स नाउ यू कैन लीव। सर सर सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए। शेड्यूल बता दी कब तक, शेड्यूल बता दी सर कब तक? हाँ देखिए, शेड्यूल में फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमारा हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। यही टाइम होगा, 8 से 9 बजे। एक्सरसाइज का आपने देख लिया है, आपके पास पीपीटी भी पहुंच गई होगी, नहीं है तो आप ले सकते हैं। और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करना है। दूसरा नंबर है, सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। देखो, एक साइट पे जाएंगे, वहां पर फॉर्म निकलेगा, उसमें बच्चे का जो भी डिटेल मांगी भर के वहां भेजना जरूरी है। और तीसरा नंबर है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, अपने बच्चे को टाइम पे तैयार रखें और उनको पूरा क्लास अटेंड करने दें। और उसको टाइम टाइम पर आप बताते भी रहें कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तभी हमारा ये सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर पी रविंदर। हाँ जी सर। हाँ, आज 2 मिनट्स ओनली प्लीज, कमेंट्स। Overall, it was an excellent program. The important things which parents have to keep in view, that is quality of exercise, shape and awareness of body parts, heart rate and diary. Overall, very good hard work you have to do throughout this program. Thank you very much. Okay, thank you, Ravinder. One more, our expert will join on Wednesday, that is Mr. Lakhan. He will be controlling all things. He will join on Wednesday. So I thank everyone, all the experts, all the parents, all the guardians, my coaches who are attending this, watching our show, online TV, online program. So I thank everyone, and number-wise quite good. Today we just touched 400 kids. So same interest should be there every day. Thank you very much. So we leave our this today's program. Thank you very much.